We are going to read part 2 of anesthesia. Uh, Before I told you about uh, different anesthetic agents and why we need anesthesia, one point I want to add before that boiling point of this fluorine is 22 degrees Celsius, uh, and because boiling point is too less of this fluorine, so we use special vaporizer is named Taxi, and the color of the vaporizer is the blue. Okay. Yeah, this I also mentioned here. Okay, so we already read intravenous anesthetic agents and ketamine, etomidate. We already read. Now today uh, we will read about local anesthesia and what is the mode of action of the local anesthesia. Mode of the action. This is very important for the exam point of view. We already asked question in the exams. What is the mode of action of the local anesthesia? The local anesthesia blocks sodium channel, and which sodium channel they block? Inactivated stage. Now, different stages are in there in sodium channels. So they which stage they block? They block inactivated stage. You should remember this. Okay. Okay. Now local anesthesia is two types. One is central neuroaxial blockade and second is peripheral nerve blockade. And when in central neuroaxial blockade, you can see spinal, which is in the central axis, spinal, epidural, and caudal. Okay, and in peripheral nerve blockage, we will do femoral nerve blockade, sciatic nerve blockade, and brachial plexus blockade. Okay, here this is overview, and now we are going to the order of blocking nerve fiber. Okay, we should need to remember this is the important question from where the question for exam. The order first is the autonomic, then sensory, and then the motor. Okay. First, which nerve fiber will be block? Autonomic, then sensory, and then motor. Okay, and when they ask you the question, first which sensation first in sensory block, which sensation go first and the first is the cold sensation. Okay. आप क्या करते हो आइस लेते हो और आइस को टच करवा के देखते हो on the patient foot, and when you ask patient you are feeling cold or not and patient say I don't feel, it means the anesthesia start working. Okay. And order of blocking the this is the autonomic sensory motor, and now different type of nerve fibers are there. Then which one first block? Type B, A, C. You can remember like the BAC. Okay, order. And type A nerve fiber are also four type: alpha, beta, gamma, delta. So you can remember opposite. Okay, alpha first which one block? Delta, then gamma, then beta, then alpha. And myelinated fibers block first and after non-myelinated fiber, and small is obvious the smaller fibers stop working first, it means block first and after larger fiber. Okay, here one thing you need to know what the pKa of the drug, and you have read in the chemistry. When pK is closer to body pH, the faster onset of action will be happen. Like which there's two there are two anesthesia agent, ligocaine जिसका pH 7.7 है, and bupivacaine. Okay, bupivacaine जिसका pK 8.1. So when they go into the body, they do faster action because their pK value is near closer to the body pH. Okay, and then now higher concentration. It's obvious when you give doses in the higher concentration. When you give higher concentration, fastest onset of the action will be happen. And when you increase dose, what happen? Dose
work on the duration of action. When you give large dose, and the duration of the action will be increased. Okay, and when you give concentration high, what happen? The onset of the action will increase. So you should remember this. This will this is also exam question. Sensation loss. I already told you sensation. First sensation is loss is the temperature, और in temperature first is cold. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आइस का, आइस को आप जब टच करवाओगे then you and you ask a patient that you are feeling cold or not. So first sensory loss is temperature, then pain, touch, deep pressure, and proprioception. Now, local anesthetics are two types: ester linked and amide linked. Ester linked and amide linked. Then ester linked metabolized by plasma cholinesterase enzyme except cocaine. ना कोकेन को छोड़ के बाकी जितने भी एस्टर लिंक हैं वो सब कहाँ मेटाबोलाइज होंगे? वो सब प्लाज्मा में होंगे। प्लाज्मा के अंदर एक सॉरी सो क्योंकि ये प्लाज्मा के अंदर ही मेटाबोलाइज हो जाएंगे, इसलिए क्या होंगे? शॉर्ट एक्टिंग। ये प्लाज्मा में क्या मेटाबोलाइज होगा, सो दे आर व्हाट? दे आर शॉर्ट एक्टिंग। राइट, अमाइड कहाँ पे मेटाबोलाइज होते हैं? लीवर में होते हैं, तो ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। इनको प्लाज्मा से फिर लीवर में पहुंचा तब जाके ये होते हैं। और एस्टर लिंक जो भी होंगे जैसे प्रोकेन, बेंजोकेन, कोकेन, दे आर एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। सो ये क्या करते हैं? ये एलर्जीज करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? पावा, पैरामिनोबेंजोइक एसिड। जबकि जो अमाइड लिंक्ड होते हैं, अमाइड लिंक में लिग्नोकेन, ब्यूपीवेकेन, रोपीवेकेन, दे आर अमाइड लिंक। अब इनको याद कैसे रखोगे? अमाइड लिंक में दो आई होते हैं, एक एक्स्ट्रा आई होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आई होता है। देखो प्रोकेन में कितने आई है? एक आई। बेंजोकेन 1 आई, कोकेन 1 आई, जबकि लिग्नोकेन 2 आई, ब्यूपीवेकेन 2 आई और ओपीवेकेन 2 आई। तो जब भी क्वेश्चन आए विच इज अमाइड लिंक एंड विच इज एस्टर लिंक, तो यू कैन सर्च फॉर द आई। ओके, अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद कर सकते तो आप स्ट्रिक्ट से याद रख सकते हैं। इफ दे हैव एक्स्ट्रा आई देन दिस इज अमाइड, एक्स्ट्रा आई अमाइड, एक्स्ट्रा आई अमाइड। Okay, and ester link have only one amide, and you should remember them: procaine, benzocaine, cocaine. Yeah, cocaine is the natural, you आपने सुना भी होगा cocaine यूज एज ए ड्रग, ठीक, जो ड्रग एडिक्टर होते हैं। नाउ शॉर्ट एक्टिंग ड्यूरेशन, तो सबसे शॉर्ट एक्टिंग ड्यूरेशन होता है क्लोरोप्रोकेन का। फर्स्ट, क्लोरोप्रोकेन इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग ड्यूरेशन, around 15 to 20 minutes. If chloroprocaine is not in the option, then you go for the procaine. Okay, now intermediate acting duration is the lignocaine, where lignocaine सबसे अधिक यूज, मोस्टली यूज कोई लोकल एनेस्थेटिक है lignocaine, 45 minutes to 1 hour. Long duration is dibuvacaine. If dibuvacaine is not in the option, then you go for the bupivacaine. Addition of the vasoconstrictor, now we can add vasoconstrictor like adrenaline with local anesthetic to increase the duration of the, or we can say like effect of the local anesthetic. And addition of sodium bicarbonate, we add this for stability. Now if we add adrenaline, what is the doses of adrenaline? This is very important for the exam point of view. They ask many times. Okay, adrenaline. Now adrenaline doses, when we give intramuscular 1:1000, when we give intravenous IV 1:10,000, when subcutaneous 1:1000. Okay, and epidural, when we give epidural, this is the already asked in exam, 1 in 2 lakhs per 5 microgram MLC in ring block. Okay, local question क्या आता है? When we don't give local anesthetic with adrenaline, where is the what is the contraction? Then you can say end artery block. You don't do end artery block with local anesthetic and adrenaline. Local anesthetic with adrenaline, what is the end artery block? Like fingers, toes, penis. These are the there where the there is the there this is the place where end artery are present. Okay, फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक जो कि नेचुरली डिराइव हुआ था वो कौन सा है, जिसका एक्शन कैसा होता है? सिंपल तो माइमेटिक एक्शन होता है, और वो होता है कोकेन। मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक इज बुपीवेकेन।
मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक बुप्रीवेकेन। यू कैन रिमेंबर लाइक, कैसे याद कर सकते हो, बुप्रीवेकेन मतलब सभी का बाप है, सभी का बाप है, इसलिए क्या है, सबसे अधिक हार्ट को दिक्कत करेगा, सबसे अधिक प्रॉब्लम किसको करेगा, हार्ट को करेगा। अब लोकल एनेस्थेटिक कॉज मेथ हीमोग्लोबिन, किसके कारण मेथ हीमोग्लोबिन बनता है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। यू शुड रिमेंबर दिस। बेंजोकैन एंड पिरिलोकैन, बेंजोकैन एंड पिरिलोकैन ये क्या पैदा करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये मेथ हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है। मोस्ट मोस्ट कॉमनली यूज, मैं जैसे अभी बताया था, सबसे अधिक जो यूज होता है वो कौन सा होता है, लिग्नोकैन। पर इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को प्रेसिपिटेट करवा देता है। अगर आपके अंदर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की जीन प्रेजेंट है तो ये क्या करवा देगा, उसको प्रेसिपिटेट करवा देगा। इसको किसके यूज में करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज हो गया, और ट्रीट वेंट्रिकुलर एरिथमिया। इसका डोज क्या है, अगर इसको एड्रेनालिन के साथ लेते हैं तो 7 mg पर केजी लेते हैं, अगर इसका सिंपल लेते हैं तो 5 mg पर केजी लेते हैं। इसका डोज भी पूछा गया है, तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा ही जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स इज क्लोरोप्रोकैन। पहले ही बता दिया, क्लोरोप्रोकैन एंड हियर क्लोरोप्रोकैन एंड प्रोकैन 2 is the shortest acting, and largest longest acting is the dibuvacan and bupivacan. Dibuvacan अगर ऑप्शन में नहीं है then you go for the bupivacan. And imlakin, many time asked question, what is the content of the imlakin, is the lignocaine 25% and prilocaine 25%. Okay, use this imlakin we use in the pediatrics. Before injection we apply the cream, and uh, the children will not feel the pain. Okay, then what is last is the local anesthetic systemic toxicity. आपने ज़्यादा local anesthesia दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो गई। तो इसके भी सबसे साइट ऑफ इंजेक्शन जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं टॉक्सिसिटी के, इंटरकोस्टल ब्लॉक, देन कॉर्डल, जहाँ पे ज़्यादा नर्व्स हैं वहाँ पर, तो इंटरकोस्टल ब्लॉक, कॉर्डल, एपिड्यूरल, ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सबक्यूटेनियस इंजरी। अब साइंस क्या आएंगे, सबसे पहला साइन इसका पेरीओलर टिंगलिंग या नमनेस हो जाएगी, देन precipitate into seizures, and they finally go into the coma. This is CNS, and what happened to CVS? CVS will go to bradycardia, then arrhythmia, then it will go into arrest. And what is the antidote? Antidote is 20% IV intralipid. Many time asked question. This is the very important question. Many time asked, what we will give when last is precipitated. Okay. And what is tumescent anesthesia? Tumescent anesthesia, like जो मोटे होते हैं, ओबीस पर्सन होते हैं, वो पतले होना चाहते हैं पर एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो क्या करवाएंगे, सर्जरी, लिपोसक्शन करवाते हैं, तो उसी को बोलते हैं, उसमें जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया। और इसका डोज इसमें लिग्नोकोन का डोज 35 to 55 mg पर केजी होता है ना, क्योंकि काफ़ी डीप करना पड़ता है उसको। ठीक, नाउ local anesthetic agent देख ली। Now we are going to read neuromuscular blocking drugs. What is neuromuscular blocking drug? तो neuromuscular blocking drug जो क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक, अब ये दो टाइप के होंगे, एक होते हैं डीपोलराइजिंग केवल एक एग्जांपल है, जैसे याद रखना है, डीपोलराइजिंग सक्सिनिल कोलाइन, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद ही रखना है आपको, सक्सिनिल कोलाइन केवल एक एग्जांपल डीपोलराइजिंग। और पोलराइजिंग के, नॉन पोलराइजिंग के, आपने फार्मा में पढ़े होंगे, क्यूरेनियम, जितने भी क्यूरेनियम होते हैं वो सारे किस में आते हैं, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग में, रो क्यूरोनियम, वी क्यूरोनियम, एवा क्यूरोनियम। ओके, तो ये है। अब सक्सेनिल कोलिन का और इनका दोनों ही न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, तो इनका दोनों का भी जो टारगेट साइट होगी, वो टारगेट साइट क्या होगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होंगे। टारगेट साइट दोनों के सेम है, बस ये डिपोलराइजिंग है, ये नॉन डिपोलराइजिंग है। उसके अलावा क्या होता है, जब इसको देते हैं, जब भी सक्सेनिल कोलाइन को अप्लाई करेंगे तो उसमें फेसिकुलेशन, फर्स्ट फेसिकुलेशन होगा, ट्विचेस होगा, देन पर्सन गोइंग टू पैरालिसिस। ओके, एंड सक्सेनिल कोलिन का जो एक्शन टाइम होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन टाइम होता है, वो 9 to 14 मिनट है। ठीक है, याद रखना है 9 to 14 मिनट। एंड ये डीजनरेट कैसे होता है, प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है सूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम। सूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम क्या होता है, प्रोड्यूस इन लीवर, बट ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और जो उसको कि सक्सेनिल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है। एससीएच मतलब सक्सेनिल कोलिन ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब
अगर मान लो कि इनकी रिवर्स करना है इनके इफेक्ट को, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग जैसे रोकिरोनियम, वीकिरोनियम, एवाकिरोनियम को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने से रिवर्स करना है इसके इफेक्ट को, तो रिवर्स कौन करेगा, नियोस्टिग्मिन और ग्लाइकोपाइरुलेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, उसके अलावा सुगामाडेक्स, सुगामाडेक्स भी है, मतलब उसमें भी रिवर्सल में हेल्प करता है, बट ये रिवर्स नहीं करते, ये एक तरह से एंटीडोस डोट है सुगामाडेक्स। जब ज़्यादा हो गए तो आपको एंटीडोस सुगामाडेक्स। ठीक, तो अगर रिवर्सल एजेंट पूछता है तो आपको नियोस्टिग्मिन और ग्लाइकोपाइरुलेट, ये दोनों देखने। ग्लाइकोपाइरुलेट क्या करता है, एंटी सिक्रेशन करता है, बॉडी के सिक्रेशन को कम करता है, एंटी सिक्रेटरी होता है। ठीक, अब जब ये सूडोकोलिन स्टेज जो होता है, सक्सिनिल कोलिन को क्या करता है, डिग्रेड करता है, ये तो देखा हमने। अब ये क्या करेगा कि जब प्रेगनेंसी होगी या फिर कोई लिवर डिसीज है या हम लोग ओसीपी पर चल रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि इसकी क्वालिटी कमजोर हो जाएगी। क्वालिटी कमजोर होगी, सक्सिनिल कोलाइन बहुत देर तक बॉडी में रहेगा, तो इसके काफ़ी साइड इफेक्ट होंगे। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एफएफपी देते हैं, फेस्ट फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है पर्सन को, पेशेंट को। ओके, एंड डिबू के व्हाट इज द डिबू कैन नंबर, ये याद रखना। डिबू कैन नंबर क्या है, चेक क्वालिटी, किसकी क्वालिटी चेक करते हैं, सक्सिनिल कोलाइन कोलिन की क्वालिटी चेक करने के लिए एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं डिबू कैन नंबर। बस आपको याद रखना है कि डिबू कैन नंबर क्या है, तो सक्सिनिल कोलाइन की क्वालिटी जांच चेक करने के लिए जो नंबर देखते हैं उसको बोलते हैं डिबू कैन नंबर। ओके, इसका ऑनसेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, 30 सेकंड से 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर आदमी सो गया। ठीक, और बहुत कम होता है 9 से 14 मिनट में, 9 से 14 मिनट में, मतलब शॉर्ट सर्जरी जो करनी है वो सभी में होता है। तो कहाँ यूज होगा, अगर इमरजेंसी में कोई आ गया, जल्दी करना है, तो इमरजेंसी सर्जरी में। ठीक है, रेपिड आरएसआई में, रेपिड सीक्वेंस इंटुबेशन में, तेज बताए इसका बहुत तेज ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो तेज जो भी रेपिड सर्जरी होगी, जो भी डिफिकल्ट इंटुबेशन है उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके कारण क्या होता है, कोई ब्रेडिकार्डिया है ना, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपरकेलेमिया हो जाता है, माइल्जिया, आईसीपी बढ़ जाता है और आईयूपी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इनके इसके कारण ये इसके साइड इफेक्ट है। ठीक है, और हाइपरकेलेमिया कब कहते हैं, जब 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से पोटेशियम आयन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, चलिए अब फेज 1, इसका जो फेज 1 होता है, किसका, सक्सिनिल कोलिन का, इसका फेज 1 तो नॉर्मल एक्शन करता है, पर अगर आपने ज़्यादा दे दिया, जब लगातार डोज बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा, फेज 2 में डैमेज रिसेप्टर ड्यू टू रिपीटेशन एंड इंक्रीज डोज। ठीक, तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, सक्सिनिल कोलिन का, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अगर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो रहा है तो हम सक्सिनिल कोलिन नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट करवा देगा। बर्न्स के केस में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में, अगर आईयूपी और आईसीपी बढ़ा हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या करवाता है, आईसीपी और आईयूपी को बढ़ाता है। आईसीपी मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर और आईयूपी मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ाता है, तो उस कंडीशन में अगर बढ़ा हुआ है तो हम नहीं देंगे। ठीक है, रीनल फेलियर के केसेस में, सेप्सिस के केसेस में, या हाइपरकेलेमिया, क्योंकि हाइपरकेलेमिया कराता है तो उस केसेस में भी हम लोग नहीं देंगे। लीवर फेलियर के केसेस में भी नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो एंजाइम है वो कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है, तो हम लोग लीवर फेलियर के केस में भी इसको नहीं देंगे। इसका एंजाइम कौन सा है, सूडोकोलिनेस्टरेज। एक ये क्या कौन सा था, ये था पोलराइजिंग, सॉरी डीपोलराइजिंग नॉन मस्कुलर एनएमबीज, और दूसरा है नॉन डीपोलराइजिंग। हम लोग दो पढ़ रहे हैं, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग। ठीक, तो डीपोलराइजिंग इनका जो डिग्रेडेशन होता है वो सूडोकोलिनेस्टरेज करता है। ठीक है, और जो नॉन डीपोलराइजिंग है उसमें एक जो एक नॉन डिस्पोलाइजिंग मीवाक्यूरेनियम भी सूडोकोलिनेस्टरेज द्वारा होता है, ये हमको याद रखना है। मीवाक्यूरेनियम शॉर्टेस्ट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट इज मीवाक्यूरेनियम, मेटाबोलाइज्ड बाय सूडोकोलिनेस्टरेज। अब मीवाक्यूरेनियम इसको याद रख सकते हैं, मेवा होता है, मेवा सबको पसंद होता है, जल्दी खा लेते हैं, जल्दी खा लेते हैं, तो इसलिए ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। और वैसे देखा है शॉर्टेस्ट एक्टिंग क्यों है, क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो जाता है सूडोकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम द्वारा, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, लीवर तक जाने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी होता है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा है, पेनक्यूरेनियम। ठीक, फर्स्ट क्लिनिकल साइन इन नॉन डिपोलराइजिंग मसल ब्लॉकेट, ठीक, दिस इज मसल ब्लॉकेट इज टोसिस। फर्स्ट साइन अगर नॉन डिपोलराइजिंग मसल ब्लॉकेट का देखोगे तो क्या देखोगे, टोसिस। लॉन्गेस्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज पेनक्लोरेनियम, ऑलरेडी आई टोल्ड यू।
फास्टेस्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर देखे जाए तो सक्सिनिल कोलिन तो है ही डिपोलरिन में सबसे तेज। अगर नॉन डिपोलराइजिंग पूछे तो रो के क्यूरेनियम, रो से याद रख सकते हो, आर से आर ना, रो मतलब रैपिड, आर से आर मतलब रैपिड। अगर रैपिड कौन सा है, नॉन डिपोलराइजिंग में रोक्यूरेनियम और डिपोलराइजिंग में सक्सिनिल कोलिन। अब अल्टरनेटिव जिसको भी हम लोग सस्टेन कोलिन नहीं दे सकते हैं, आरएसआई, हम आरएसआई करना है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करना नहीं दे सकते, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे उसकी जगह, नॉन डिपोलराइजिंग रोकोनियम यूज कर लेंगे। नॉन मस्कुलर ब्लॉकेज प्रीफर इन डे केयर सर्जरी, प्रीफर इन डे केयर सर्जरी में डे केयर में जल्दी जल्दी काम करना है तो वी विल यूज सक्सिनिकोलिन रोक्यूरेनियम, जो भी जल्दी इफेक्ट करता है, फास्टेस्ट इफेक्ट होता है। साथ में इसके साथ देंगे रोक्यूरेनियम के साथ सुगामाडेक्स। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी जा सके, ये पूरा ही पेज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। ये इसमें आपको कहाँ देना है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये क्या प्रेसिपिटेट करवाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी बोल्ड लेटर में लिखे हुए पॉइंट्स है सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, सब एग्जाम क्वेश्चन हैं। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर वर्कर सेफ इन, जो रीनल फेलियर में कौन सा सेफ होगा, सॉरी एथ्राक्यूरेनियम, एथ्राक्यूरेनियम। ये क्या करता है, हिस्टामिन को रिलीज करता है, ये भी याद रखना है। एट्राक्यूरेनियम किसको रिलीज करता है, हिस्टामिन को, तो हिस्टामिन को रिलीज करेगा तो एलर्जी लाइक सिम्टम्स हो जाएंगे, रेसेस हो जाएंगे, जो भी एलर्जी लाइक सिम्टम है वो आ सकते हैं एट्राक्यूरेनियम से। ठीक है, इसी का छोटा भाई सिस एट्राक्यूरेनियम, सिस जैसे जैसे आप सुना हुआ है, सिस फॉर्म बना देते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, तो सिस फॉर्म जनरल मेडिसिन में सिस फॉर्म यूज कर जाती है। ओके, उसके बाद याद रखना है एट्राक्यूरेनियम जो है वो हॉफमैन एलिमिनेशन द्वारा डिग्रेड होता है प्लाज्मा में। ठीक है, और उसमें पीएच और टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हॉफमैन एलिमिनेशन। सिस एट्राक्यूरियम में और एट्राक्यूरियम दोनों में ही, यूरेनियम में दोनों में ही कौन सा यूज होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन। इसका एक एलिमिनेट होता है जिससे इसका एक मेटाबोलाइट होता है एट्राक्लोनियम, मेटाबोलाइट ऑफ एट्राक्लोनियम दैट कॉज सीजर इज द लुडानोसिन। ओके, ये याद रखना, लुडाडोसिन, ये सब याद रखना रखना। अब उसके बाद कौन सा कार्डियक स्टेबल, मोस्ट कार्डियक स्टेबल मसल रिलैक्सेंट इज द विनक्यूरोनियम, ये याद रखना है, विकोरोनियम। अगर हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं तो हम लोग विकोरोनियम यूज करेंगे। मोस्ट कॉमन यूज नर्व फॉर क्लिनिकल मॉनिटरिंग ऑफ नर्व ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जनरल नर्व, मोस्ट कॉमन हम लोग यहाँ पे टी और चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ 4। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज दैट कॉज टेकिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन इज द पेनक्यूरेनियम। पेनक्यूरेनियम क्योंकि लंबे समय तक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, देखा था हम लोग सब लोग, लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा, पेन, पेन का मतलब होता है ऑल ना, जैसे पेन इंडिया, तो पेन मतलब ऑल, तो इसलिए ये के लॉन्गेस्ट एक्टिंग है और इसलिए इसके कारण क्या हो सकता है, टेकिकार्डिया हाइपरटेंशन हो सकती है। अब ओल्डर एजेंट डेट क्रॉस प्लेसेंटा, ऐसा जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सके, गैलेनिन। So older agent that cross placenta is गेलामाइन। प्रोलोंगिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज को बढ़ा देगा वो है Mg2+, डायूरेटिक्स, ओके, एंड हाइपोथर्मिया एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स। हाइपोथर्मिया हम लोग आगे देखेंगे TTM में, हाइपोथर्मिया से कैसे प्रोलॉन्ग होता है। अब रीजनल एनेस्थीसिया, किस रीजन मतलब पर्टिकुलर एक रीजन को ही क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो लोकल एनेस्थीसिया में पर्टिकुलर एक लोकल एरिया को, यहाँ पे पूरा रीजन ब्लॉक होगा, जैसे सेंट्रल न्यूरेक्सल, इसको दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, जैसे लोकल किया था, तो इसको भी सेंट्रल हो गया, पेरिकुलर हो गया। अब सेंट्रल के अंदर स्पाइनल, एपिड्यूरल और कॉर्डल, और पेरिकुलर के अंदर ब्रैकियल प्लेक्सस और फीमोरल नर्व और सिएटिक नर्व। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है कहाँ दिया जाता है, ये भी याद रखना है। तो ये दिया जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में दिया जाता है, और L3 L4 के बीच में दिया जाता है, क्योंकि अराउंड L1, कुछ में L1 और L2, मोस्टली L1 के आसपास हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसके नीचे क्या देते हैं, सब ये स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और सब एरेक्नोइड स्पेस में ही लंबर पंचर भी किया जाता है। लंबर, तो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछते ही है क्वेश्चन, आता है ये क्वेश्चन। ठीक,
और इसमें क्या यूज करते हैं, 0.5% हेवी बुपीरेकेन, जैसे बताया बुपीरेकेन बाप है सब तो कार्डियोटॉक्सिक बहुत कार्डियोटॉक्सिक होता है, तो इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। ये लंबर पंचर की पिक्चर है, ये जो दिया जा रहा है वो कहाँ दिया जा रहा है, L3, मोस्टली हम लोग L3 L4 में देते हैं, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन कहाँ है स्पाइनल एनेस्थीसिया का, स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोग वहाँ देंगे जहाँ भी नीचे के लोअर पार्ट को हम क्या करना है, एनेस्थीसिया देना है, उसको हमें कट आउट करना है, या सर्जरी लोअर पार्ट की, जैसे LSCS में है ना, जो सिजेरियन सेक्शन होता है, और ऑर्थोपेडिक लोअर लिंग का ऑर्थोपेडिक है, हर्निया है, हाइड्रोसील है, जो भी लोअर पार्ट का अगर होगा तो वहाँ पे हम क्या दे देंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया देके उसको क्या करेंगे, उस सर्जरी को कर सकते हैं। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कहाँ हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसको लोकल एनेस्थेटिक एनर्जी, अगर लोकल एनेस्थीसिया एलर्जी है तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। पेशेंट अगर मना कर दे तो हम लोग जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, अगर पेशेंट मना कर रहा है तो उसको हम लोग जनरल ये नहीं देंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया। अगर ICP बढ़ा हुआ है तो भी नहीं देंगे, ठीक है, और अगर कोगुलोपैथी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो भी हम लोग उसको नहीं देंगे, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी ये टॉपिक आ रहा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विच इज पियर्स्ड इन वाइल गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। और मैंने बताया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दो या लंबर पंक्चर करो, दोनों में ही अपने को देना कहाँ है, सब रेक्नोइड स्पेस में। तो ये लंबर पंक्चर का भी क्वेश्चन होता है ये, और स्पाइनल एनेस्थीसिया का भी क्वेश्चन होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर पियर्स होंगे। तो ऑब्वियस सबसे पहला स्ट्रक्चर तो स्किन होगा, स्किन के नीचे क्या होता है, फर्स्ट इज स्किन, स्किन के नीचे क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक। उसके बाद सुप्रा स्पाइनस, जैसे ये मान लो, ये सबसे पहले स्किन हो गई, ये स्किन फिर मान लो स्किन के नीचे ये रहा फेट, ठीक। पहले स्किन, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद क्या आएगी वहाँ पे, वर्टिब्री, वर्टिब्री के ऐसे स्पाइन निकले रहेंगे, जैसे ये स्पाइन, ठीक। तो सबसे पहले आएंगे तो देखिए स्पाइन है, स्पाइन को क्या कहेंगे, स्पाइन कहेंगे। और क्योंकि ये कहाँ है, ऊपर है, ऊपर के साथ इसको सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इनके बीच में जो लिगामेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पियर्स करेंगे। तो पहला हो गया स्किन, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, और सुप्रा स्पाइनस के बाद अब पहले इस लिगामेंट को करेंगे, उसके बाद अंदर वाले लिगामेंट जो स्पाइन के बीच में लिगामेंट होंगे तो उनको करेंगे इंटर स्पाइनस लिगामेंट। उसके बाद यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं लिगामेंटम फ्लेवम, जो कि काफ़ी मजबूत होता है, लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक। तो लिगामेंटम फ्लेवम, देन उसके बाद अब इसके बाद मेटर आ जाएंगे, इसके बाद एपिड्यूरल स्पेस आएगा। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, एपिड्यूरल स्पेस में। एपिड्यूरल स्पेस के बाद डूरा मैटर आएगा, डूरा मैटर के बाद अरेक्नोइड मैटर आएगा, अरेक्नोइड मैटर के बाद सब एरेक्नोइड स्पेस होगा, अरेक्नोइड और उसके बाद सब एरेक्नोइड ये स्पेस आए, ठीक। तो ये इसी ऑर्डर में याद रखना है, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, एपिड्यूरल स्पेस, डूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, सब एरेक्नोइड मैटर। इसमें जो ड्यूरा मैटर है वो हार्ड होता है, ठीक है, ड्यूरामीटर भी हार्ड है और लिगामेंटम फ्लेवम। तो जैसे ही हम जैसे कोई चीज़ हार्ड चीज़ को पिक करते हैं तो पिक करने के बाद एक लॉस ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है ना, कि नीडल ईजिली चली जाती है, पहले नीडल को थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट लॉस ऑफ रेजिस्टेंस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, फर्स्ट लॉस ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा लिगामेंटम फ्लेवम पे, कहाँ देखने को, लिगामेंटम फ्लेवम, और दूसरा लॉस ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरामीटर पे, ठीक। अब गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, है पोस्ट ड्यूरल, मतलब हमने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे जब हम लंबर पंक्चर करेंगे, लंबर पंक्चर में CSF निकलेगा, CSF निकलेगा तो ऑब्वियस CSF थोड़ा कम हो जाता है, CSF कम होगा तो हेडेक होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं PDPH, शॉर्ट फॉर्म में PDPH, कई बार ऑप्शन में PDPH ही दिया जाता है। तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, आप एपिड्यूरल ब्लड पेस्ट कर दो, वहाँ पे एपिड्यूरल ब्लड पेस्ट, किसी आर्टरी से लेके ब्लड पेस्ट कर दो, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम कहाँ देंगे, एपिड्यूरल स्पेस में देंगे। जैसे ये देखा तो हम लोगों को एपिड्यूरल में कहाँ तक आना है, एपिड्यूरल में यहाँ से चलेंगे, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ फ्लेवम, और हम लोग पहुँच गए
एपिड्यूरल स्पेस। इसके बाद हम लोग नहीं होते। इसमें कितने लॉस ऑफ रेजिस्टेंस मिलेंगे? केवल एक। तो अगर क्वेश्चन आए कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कितने लॉस ऑफ रेजिस्टेंस मिलते हैं? केवल एक लिगामेंटम लेवल। इससे कॉम्प्लिकेशन कम है क्योंकि हमको दो, अगर ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और सब अरेक्नॉइड को अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे तो इन तीनों को भी पियर्स करना पड़ेगा, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। इसके कम कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इसकी नीडल जो होती है, कुछ क्वेश्चन आया हुआ है इसकी नीडल पे, इसको याद रखना है कि कैसी होती है। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? जैसे कि सेम स्पाइनल एनेस्थीसिया जैसे ही। टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है कि एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लिटा देंगे। तो जो एनेस्थीसिया था वो सीएसएफ के थ्रू ऊपर तक चला जाएगा, है ना। तो लंबर रीजन में दिया हमने L3 L4 के बीच, फिर वो थोरोसिस चला गया, थोरोसिस से सर्वाइकल चला गया, सर्वाइकल से मेडुला ऑब्लिगेंटा चला गया। जैसे ये बैठा था, बैठे में हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या किया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया लंबर L3 L4 के बीच में। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में इसको लिटा दिया, ठीक है। ये सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया। अब सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया तो जो हमने यहाँ पे दिया था ये एनेस्थेटिक एजेंट, वो क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा डाउन साइड में। तो ये लंबर से होकर थोरेसिस में, थोरेसिस सर्वाइकल, सर्वाइकल से मेडुला ऑब्लिगेंटा, तो ठीक है। उसके अलावा कोडल एनेस्थीसिया हम बच्चों में यूज करते हैं अप टू 8 ईयर। कहाँ पे दिया जाता है? ये सेक्रल हाइटस पे दिया जाता है। यहाँ पे लॉस ऑफ रेजिस्टेंस होता है सेक्रो कोक्सीजियल लिगामेंट। अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। आपको ये यहाँ याद रखना है, ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है जहाँ भी मैंने स्टार लगाए हुए हैं, और जो भी ये बोल्ड लेटर्स में है वो सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारे एग्जाम्स क्वेश्चन है, सारे फिर से रिपीट होंगे। एग्जाम क्वेश्चन भी है और उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक। बियर्स ब्लॉक का ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिसेंट ही क्वेश्चन आया हुआ था ये, कि इसमें क्या बियर्स ब्लॉक क्या होता है, इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। इसमें क्या किया, जैसे कि हम लोग बीपी चेक करते हैं तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं प्रेशर, मतलब एक प्रेशर लगाते हैं जिससे कि वहाँ पे ब्लॉकिंग होता है, वहाँ पे ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन से हम लोग बीपी नापते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे एक कफ लगा के क्या कर दिया जाएगा, वी विल ब्लॉक these veins and we will give anesthesia in this part, okay। और जनरली वी यूज लिडोकेन, बट इसमें बीपी वेकेन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि बीपी वेकेन ज़्यादातर कार्डियोटॉक्सिक है। तो अगर गलती से भी ये थोड़ा लूज हुआ तो यह सिस्टमिक में जाके हार्ट के जो सिम्टम्स उसको प्रेसिपिटेट कर सकता है। देन पेरिफेरल नर्व ब्लॉकेज, पेरिफेरल नर्व ब्लॉकेज जो पेरिफेरी के नर्व है, तो कहाँ देना पेरिफेरल नर्व ब्लॉकेज, जब अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की सर्जरी हो तो देना है ना। तो वहाँ पे पेरिफेरल नर्व ब्लॉकेज देंगे, ठीक है। इससे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ठीक। अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो नहीं देंगे, अगर एलर्जी है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से तो नहीं देंगे, अगर प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोपैथी हो रही है पहले से, प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोपैथी है तो भी हम इसको नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसे आता नहीं, ठीक। अब इसमें आपसे जनरली इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। टेक्निक्स टू गिविंग ब्लॉक, कैसे देंगे इसको, लैंडमार्क के थ्रू। लैंडमार्क पहले करेंगे, पीएन लोकेटर होता है जिससे नर्व को लोकेट किया जा सकता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी के थ्रू। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया सब, अच्छा उसका अगर कॉम्प्लिकेशन क्या है, न्यूरोपैथी ना, इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है न्यूरोपैथी हो जाए। अब ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक यूएसजी दिख रही है, ठीक है। ये क्या है, ये एक यूएसजी है, ये यहाँ पे यूएसजी जो अल्ट्रासोनोग्राफी दिख रही है, यहाँ पे यूएसजी प्रोब दिख रहा है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये यूएसजी गाइडेड है। तो इमेज दे सकते हैं, पूछ सकते हैं ये कौन सा है, तो ये यूएसजी गाइडेड है। इसको टेप बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स एब्डोमिनल पेन पेच, इसको पेच पेच आएगा, ठीक, तो दिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखें इंटरस्क्लीन ब्लॉक, क्योंकि ये यहाँ दिया जा रहा है इंटरस्क्लीन के बीच में, इसलिए इंटरस्क्लीन ब्लॉक। ये भी लैंडमार्क के थ्रू है। तो ये किसके थ्रू, देखो यहाँ पे जब अगर बॉडी के ऊपर ऐसे पेन से या किसी से निशान बनाए हुए मार्क किया हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, बाय लैंडमार्क, ठीक। यहाँ पे इंटरस्क्लीन ब्लॉक में हमें क्या दिखता है, ट्रैफिक सिग्नल साइन, ये C5 C6 7, ये अगर देखेंगे यहाँ पे C5 C6 C7 ये दिखता है, इसको ट्रैफिक सिग्नल साइन कहते हैं। ये इंटरस्क्लीन ब्लॉक में दिखते हैं। फिर सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक, जब सुप्रा क्लेविकुलर के ऊपर ब्लॉक देंगे तो यहाँ पे देखिए ये सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक में बंच ऑफ ग्रेप जैसा अपीयरेंस दिखेगा, जैसे बहुत सारे अंगूर की गुच्छे।
सुप्राक्लेविकुलर में, अगर यूएसजी के थ्रू करते हैं। एक्सिलरी ब्लॉक, अब यहाँ पे देखो ये है कि ये एक पीएन लोकेटर है, नर्व को लोकेट करने के लिए, ठीक है। ये एक्सिलरी ब्लॉक, मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, वो पूछ सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है, दूसरा किस तरीके का ब्लॉक है, मतलब किस गाइड को कौन सा यूज कर रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं, लैंडमार्क कर रहे हैं, या पीएन लोकेटर का यूज किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसग्यूटियल अप्रोच है सिएटिक नर्व के लिए। सिएटिक नर्व के लिए हम लोग पॉप्लिटल अप्रोच भी अपना सकते हैं। यहाँ पे भी अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जा रहा है। ये लंबर पंक्चर की ऑलरेडी पिक्चर दिखा चुका हूँ। ये समझ में आ रहा है कि ये एंकल ब्लॉक है। तो ये आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब नया हमारा टॉपिक जो है सीपीआर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपको वैसे भी आना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी क्वेश्चन कवर होते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। मेडिसिन में इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन सीपीआर क्या हम लोग इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो सीपीआर जो रिदम होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ए सिस्टोल, अगर हो सके सिस्टोल हो ही ना रहा हो, और पल्स लेस है, पल्स आपने चेक किया पल्स ही नहीं है और सिस्टोल है। पल्स लेस इलेक्टेड, पी क्या है, पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है और पल्सलेस वेंट्रिकार्डिया, दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, पल्सलेस वेंट्रिकार्डिया। तो अब हम किस रिदम में, कौन सी रिदम जो है शॉकेबल है, मतलब हमें जो शॉक देखते हैं ना मूवी में दिखाते हैं, ऐसे शॉक देते हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक, और वो पेशेंट बिस्तर से जंप कर जाता है, तो शॉक किस कंडीशन में देंगे, तो हम लोग वो कर देंगे जब या तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा या पल्सलेस वेंट्रिकार्डिया होगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा, तब हम उसको क्या करेंगे, शॉकेबल रिदम देंगे, ठीक है। जब तब हम उसको शॉक देंगे। अगर मान लो ए सिस्टोल है, सिस्टोल नहीं हो रहा है या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है, तो हम उसको उसको बोलते हैं नॉन शॉकेबल, मतलब हम उस रिदम में उसको शॉक नहीं देंगे। क्या करें, शॉक नहीं देंगे तो छोड़ दें, छोड़ना नहीं है उसको। उसको चेस्ट कंप्रेशन लगातार करते रहना, चेस्ट कंप्रेशन करते रहना। कब तक चेस्ट कंप्रेशन करते रहें, जब तक कि उसकी शॉकेबल रिदम ना आ जाए। अब जब शॉकेबल रिदम आ जाएगी तो हम लोग क्या कर देंगे, शॉकेबल, जैसे वो शॉकेबल रिदम आएगी तो हम लोग उसको शॉकेबल रिदम आते ही शॉक दे देंगे, ठीक है। ये ये जब वहाँ पे पल्सलेस वेंट्रिकल, पल्सलेस मतलब आप पल्स चेक करोगे तो पल्स नहीं रहेगी, पर जब ईसीजी मशीन पे आप उसको डालोगे तो ईसीजी मशीन पे इस टाइप से पैटर्न दिखेंगे, ठीक, ये स्टीप पैटर्न आपको दिखेंगे। तो ये पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी होती है, उसमें एक सीधी लाइन आ जाती है, यहाँ पे एक ऐसे सीधी लाइन आती है, जैसे मूवी में आप देखते हो, तो वो पल्सलेस है। तो उस कंडीशन में आपको तब तक चेस्ट कंप्रेशन देते रहना है, तब जब तक कि वो शेकेबल रिदम में ना बदल जाए, ठीक है। अब ट्रीटेबल कोज, मतलब कार्डियक अरेस्ट के ये हैं कुछ 5H और 5T है, 5H 5T, जो कि ट्रीट किए जा सकते हैं। अगर हाइपोक्सिया हो गया तो 5H में हाइपोक्सिया हो तो हाइड्रोजन देकर ठीक कर दो, हाइपोवोलेमिया हुआ तो आईवी देकर ठीक कर लो, हाइड्रोजन आयन एसिडोसिस हो गई है तो उसको एल्कोलाइसिस दे के ठीक कर लो, मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट और ये जो भी हैं ये सब दे के ठीक कर लो। जो हाइपो या हाइपर कैलेमिया है तो पोटेशियम का है तो उसको कम ज़्यादा किया जाता है। हाइपोथर्मिया है, टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर बढ़ा के ये ठीक किया जाता है। टॉक्सिन है तो एंटीटॉक्सिक दे सकते हैं, टेम्पोनेट उसको ठीक कर सकते हैं, टेंशन न्यूमोथोरक्स से उसको भी ठीक किया जा सकता है निडल की हेल्प से। थ्रोम्बोसिस है या पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो तो उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये तो 5H और 5T हो गए जो कि ऐसे कोज कार्डियक अरेस्ट के जो कि हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। अब हाई क्वालिटी सीपीसीआर क्या था, हाई क्वालिटी सीपीसीआर में क्या, हाई क्वालिटी सीपीसीआर में ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। हाई क्वालिटी सीपीसीआर में जो रेट होगी वो 100 to 120 पर मिनट होगी। डेप्थ याद रखना 2 इंच और 5 सेंटीमीटर, बट नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। और अलाउड कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, है ना, बीच में चेस्ट रिकॉइल को इन बिटवीन कंप्रेशन पूरा चेस्ट वापस ऊपर आना चाहिए, है ना। रिड्यूस इंटरप्शन बिटवीन कंप्रेशन, है ना। और अवॉइड ओवर वेंटिलेशन, ज़्यादा वेंटिलेट भी नहीं करना है। और हमारे जो घुटने हैं वो चेस्ट की लाइन में होने चाहिए, ठीक। उसके बाद बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन आने ही आना। बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो सबसे पहला चीज़ क्या करोगे, आपने किसी को देखा, आप जा रहे थे, आपने किसी को देखा
कि अचानक से पड़ा हुआ, उसके आसपास भीड़ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वहाँ पे उसकी सेफ्टी करोगे। बीच रोड में पड़ा हुआ तो ये नहीं कि उसके ऊपर से कारें गुजर रही हैं, उसको पहले साइड में लेके आओगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वेरीफाई सीन सेफ्टी। आफ्टर उस वेरीफाई सीन सेफ्टी के बाद क्या करोगे, चेक फॉर रिस्पॉन्स। बेसिक सबसे पहले आपने सीन सेफ्टी कर ली, उसके बाद आप उनसे रिस्पॉन्स देखो, क्या रिस्पॉन्स है उनके पास, चेक करके फिर उसके बाद क्या करोगे, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। पहले रिस्पॉन्स द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट नंबर सी रिस्पॉन्स, थर्ड एक्टिवेट इमरजेंसी सपोर्ट। ये याद रखना है, यही आप वहाँ पे पूछा जाता है। मतलब यही इनमें से तीन में से क्वेश्चन आएंगे, तीसरा आएगा कि जब आपके पास एम्बुलेंस आ गई है तो आप क्या करोगे। तो जैसे ही आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी तो आप सीपीआर देना छोड़ दोगे नहीं, आप सीपीआर उनको देते रहोगे। सीपीआर देते देते ही उनको, जब एडी आ जाएगी तो उस समय रिदम चेक करोगे, रिदम कौन है, शॉकेबल रिदम है तो आप उसको शॉक दोगे, अगर शॉकेबल रिदम नहीं है तो आप कंटिन्यू रखोगे सीपीआर पे। यहीं से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपको डिवाइस आइडेंटिफाई करने का। तो एडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है, और ये मैनुअल मैनुअल डिफिब्रिलेटर, ये आपको याद रखना है, ये मेजर आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद जो डिफिब्रिलेटर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, मोनोफेजिक। मोनोफेजिक क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, ये देखिए एक ही डायरेक्शन में क्या से सेंड करेगा, फिब्रिलेशन या एनर्जी सेंड करेगा। जबकि डायफेजिक जो होगा वो दोनों तरफ से करता है। तो मोनोफेजिक में जब एक ही तरफ से कर रहा है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 360 जूल, जबकि बायोफेजिक में 350 पर से 200 जूल। अभी जो भी चल रहे हैं वो सब ऑलमोस्ट बायोफेजिक ही यूज हो रहे हैं। इन पीडियाट्रिक्स में आप 2 to 4 जूल पर केजी दो, ठीक है। अब प्लेसमेंट कहाँ करेंगे डिफिब्रिलेटर का, तो एक करेंगे सब क्लेवियर इंफ्रा क्लेविकुलर लाइन में, राइट साइड में इंफ्रा क्लेविकुलर लाइन, अगर एंटीरियर साइड से करें तो राइट में इंफ्रा, और इधर फिफ्थ कोस्टल स्पेस जहाँ पे अपेक्स होता है, हेड हार्ट का अपेक्स होता है वहाँ पे, ठीक है। और जब लेटरल पोजीशन है तो लेटरल पोजीशन में किस तरह से करेंगे, लेटरल पोजीशन में हम लोग अपेक्स करेंगे, एक तो वही अपेक्स लेफ्ट पेरिकार्डियम, और दूसरा पीछे की तरफ लेफ्ट इंट्रा इंफ्रा स्केपुला, स्केपुला के नीचे, ये स्केपुला के नीचे, सही। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड लाइन में, मतलब अपेक्स लेफ्ट पेरिकार्डियम। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लगाते कहाँ ये डिफिब्रिलेटर जो है वो पेड्स को लगाया कहाँ जाता है। इसका एक ये भी इमेज आपका आ चुका है, इसमें देखिए सारी जितनी भी चीज़ें वो सब किससे रिलेटेड है, एयरवे से रिलेटेड है। एम्बोबैग है, लेरिंगोस्कोप है ना, एलएमएस, सुप्राग्लोटिक डिवाइस, लुब्रिकेंट जेल रखा है, स्ट्रेट मिलर ब्लेड रखी है, एंडोटेकर ट्यूब रखी है, ओरोफिरिंजियल एयरवे रखा हुआ, नेरोफिरिंजियल एयरवे रखा हुआ। तो सारी चीज़ें क्या है, एयर से जिसको क्या कहते हैं, एयरवे कार्ड। ऐसी पिक्चर आ जाए पूछे क्या है, तो ये एयरवे कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है, आपको याद रखना है। जी, अब हमने एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद वो रिटर्न, मतलब उसको जब वापस आता है तो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। तो जब हम लोग रिटर्न ऑफ ये जब हम लोग सीपीआर दे रहे हैं, सीपीआर के बाद जब हम लोग देखते हैं कि रिटर्न सर्कुलेशन वापस आएगा, क्योंकि हार्ट बीट बंद होगी, सीपीआर दे रहे हैं, हार्ट अटैक आया हुआ, तो उसका जो स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, तो ये देखते हैं। तो इसका जो रूल है 10-20-40 रूल, 10-20-40 रूल, ठीक है। तो इसमें मिनिमम 80 CO2 सीपीआर के समय कितनी होनी चाहिए, 10, ठीक है। मिनिमम आर्टरी में कितना होना चाहिए, 20 mm of Hg। वापस जब ROSC हो जाए उस समय 80 CO2 कितनी होनी चाहिए, 40 mm of Hg। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हो गया उस समय जो E2CO2 है वो कितना होगा, तो 40 mm of Mg होगा, Hg होगा सर, ठीक। ये वही चीज़ है SELS की गाइडलाइन के अनुसार, CPR दो, वही सेम CPR दो, अगर रिदम शॉकेबल है तो शॉक दो, ठीक है। और शॉक उसके बाद फिर CPR, अगर शॉकेबल नहीं है, एस स्टॉल है या पर लेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है तो आप फिर उसको एपिनेफ्रिन दो, ठीक है। जब एडवांस एडवांस पहुंच चुके हैं तो एडवांस वहाँ पे हमें एपिनेफ्रिन अवेलेबल है, एपिनेफ्रिन दो, एपिनेफ्रिन के बाद फिर CPR दो। और फिर देखो रिदम जो है वो शॉकेबल आई कि नहीं, अगर वो रिदम शॉकेबल आ गई तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें शॉक देंगे, अगर रिदम शॉकेबल नहीं आई तो फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। क्या रिपीट करेंगे, एपिनेफ्रिन, ठीक। अगर एपिनेफ्रिन से भी मान लो कि एपिनेफ्रिन भी एपिनेफ्रिन
every 3 to 5 minutes we will give epinephrine, and when epinephrine will not work, then what we will give? We will give amiodarone or lidocaine. तो ये याद रखना है आपको। ये वही रिवर्सिबल कोजेस है जो आपको बता चुका हूँ 5/5 की। एडल्ट में जो है आपको 1 ब्रीथ पर 6 सेकेंड देना है, मतलब जो कितनी ब्रीथ देनी है टोटल 10 ब्रीथ पर मिनट, और चाइल्ड में 1 ब्रीथ पर 2 to 3 सेकेंड। तो चाइल्ड में टोटल कितनी ब्रीथ देने हैं आपको, वेंटिलेशन कितना करना है, 20 to 30 वेंटिलेशन। ठीक, अब ड्रग कौन कौन सी यूज करते हैं इसमें? एपिनेफ्रिन को क्या कहते हैं, ये हमने अभी हम लोग एपिनेफ्रिन देखा था, एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनालिन कहते हैं। तो एपिनेफ्रिन बोलो या एड्रेनालिन बोलो। ठीक, एट्रोपिन, एमियोडेरोन द्वारा लिडोकैन देखा था ये हम लोगों ने। ठीक, तो ये ड्रग्स यूज होती हैं। डोपामिन, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये सारी ड्रग्स जो है वो SCLS में यूज करती है। इसमें से आपसे एड्रेनालिन, एट्रोपिन, एमियोडेरोन, लिडोकैन, डोपामिन में इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ना। तो अब हमने एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। एड्रेनालिन IV दिया जाएगा एडल्ट में 1 mg। क्या रेशो रहेगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक, तो 1 ml में 1:1000 में देना है, IV देना है। ठीक, उसके बाद फॉलोड बाय 20 ml, मतलब हर 3 से 50 मिनट 3 to 5 मिनट में देंगे 20 ml। पीडियाट्रिक्स में 0.1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 1 ml था, यहाँ 0.1 ml, और 1:10,000 में देंगे। IV दे सकते हैं, IO दे सकते हैं। IO मतलब इंट्राओसियस दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंडोट्रेकियल से भी 2-3, मतलब जो अगर हम लोग IV नहीं दे रहे तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रखा तो हम लोग उससे भी दे सकते हैं IV डोज को। ठीक है, उसको डाइल्यूटेड करेंगे इन 10 ml थ्रू सक्शन कैथेटर। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से हम लोग कौन कौन सा दे सकते हैं? एड्रेनालिन दे सकते हैं, ऑल से देखो, एड्रेनालिन, एट्रोपिन और लिग्नोकैन, ये हम लोग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से इसको दे सकते हैं। फिर एट्रोपिन डोज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, डोजेस इंपॉर्टेंट है, जिनकी भी स्टार्ट करें सभी की डोजेस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, और क्वेश्चन आगे जब कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एडल्ट में जो होता है 0.6 mg IV एवरी 3 to 5 मिनट, एंड पीडियाट्रिक्स में 0.02 mg पर kg IV और IO पर डोज। डोपामिन यूज इन ट्रीटमेंट अगर ब्रेडिकार्डिया हो गया एंड नॉन रिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन, अगर एट्रोपिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डोपामिन। ठीक, ये हाई डोज में क्या करती है? वैसो कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, क्योंकि हाई डोज में वैसो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इसलिए हम इसको डोपामिन को देते हैं। फिर एडनोसिन यूज इन सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, SVT में एडनोसिन का यूज करते हैं। जब भी SVT सुना तो आप समझ लो कि एडनोसिन देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। मेनी टाइम्स दे आस्क इन द एग्जाम। इसका डोज इतना जरूरी नहीं है, पर ये याद रखना है कि एडनोसिन जो होता है वो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में दिया जाता है। देन डिल्टीजेम, ये AV नोड रिफ्लेक्शन में यूज होता है। मेटोप्रोलोल एंड इस्मेलोल बीटा ब्लॉकर है। रिजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, ये भी SVT में यूज होता है। फिर एमियोडोरन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तीनों तो इसमें नहीं पूछे गए, याद रख सकते हैं, पर एमियोडोरन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर एरिथमिया, एट्रियल एरिथमिया और वेंट्रिकुलर एरिथमिया दोनों ही दे सकते हैं। ठीक है, अगर पल्स है तो एट्रियल में इसकी डोज, क्योंकि एट्रिया छोटा है, इसकी डोज 150 mg होगी IV, जबकि वेंट्रिकुलर में इसकी डोज 300 mg IV होगी। उसके बाद रिपीट करेंगे, एट्रिया में सेम रिपीट कर देंगे, वेंट्रिकुलर में 150 mg IV रिपीट करेंगे, और चाहे तो इसका इन्फ्यूजन भी लगा सकते हैं 1 mg पर मिनट इन्फ्यूजन। तो ये एमियोडोरन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैग्नीशियम यूज इन पॉलीमार्फिक ventricular tachycardia associated with QT prolongation and prostate and points. लिडोकैन क्या है? लिडोकॉन एंटी एरिथमेटिक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में जनरली यूज होता है। इसकी डोज होती है 1 to 1.5 mg पर kg, इसको भी याद रखना है ना। और मैग्नीशियम का यूज QT प्रोलॉन्गेशन में करते हैं। ठीक है, कहते हैं
ये इन प्रेग्नेंट लेडी में, ये प्रेगनेंसी में लेफ्ट, इसको इस मेथड को बोलते हैं लेफ्ट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट, और ये है एओटो केबल कंप्रेशन। ठीक है, तो लेफ्ट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट और एओटो केबल कंप्रेशन, ये मेथड अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें वीडियो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ओपनिंग ऑफ एयरवे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैसे कैसे आप ओपन करोगे एयरवे, ओपनिंग कैसे करोगे, तो इसमें हेड टिल्ट, चेन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट। ठीक, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या करो, इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो अगर इस टाइप से होगा और यहाँ पे हैंड होगा तो ये जो थ्रस्ट है, और अगर इस टाइप से ये इमेज दी हुई है तो इसको चेन चेन लिफ्ट एंड हेड टिल्ट प्रोसीजर कहते हैं, है ना। अब कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो क्या होगा, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो जो होता है एडल्ट में 3:1 होता है, और नियोनेट्स में 3:1 होता है। ठीक है, 3 चेस्ट कंप्रेशन एंड 1 वेंटिलेशन रेशो होता है। एडवांस एयरवे, इन एडवांस एयरवे लाइक व्हेन, जब हम लोगों ने व्हेन वी ऑलरेडी intubated the patient, then like we already inserted ED tube or LMA, then we will go for 10 breath per minute in adult and 20 to 30 breath per minute in child। ऐसे भी याद रहेगा कि हम लोग जितनी सांस लेते हैं लगभग उतना ही जिस रेट से देते हैं वही 10 से 12 लेते हैं, और 10 के ब्रीथ के आसपास एडल्ट को देना, और चिल्ड्रन की ब्रेथ रेट फास्ट होती है रेस्पिरेटरी रेट, सो उनको 20 to 30 देना है। TTM क्या है, टारगेटेड टेम्परेचर मॉनिटर। इन CPR में क्या करते हैं, जब उसकी वापस से ROSC हो गया, वापस से सर्कुलेशन रिटर्न हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब कम टेम्परेचर में रख देंगे, क्योंकि कम टेम्परेचर में 24 आवर के लिए रख देंगे तो उससे क्या होगा कि वापस से वो हाइपोथर्मिया कंडीशन में बॉडी को लेस एनर्जी चाहिए, तो लेस एनर्जी चाहिए तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा तो हार्ट जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक, कार्डियो वर्जन क्या है, कार्डियो वर्जन में भी शॉक होता है पर ये अलग है, इसमें क्या करेंगे, लेस शॉक दिया जाता है और सिंक्रोनाइज शॉक होता है, मतलब एक सिंक्रोनाइज वे में शेक दिया जाता है, और इसमें ECG मॉनिटर होता है। जब एक QRS वेव आती है हर, तो एक QRS वेव के बाद क्या देते हैं, कार्डियो वर्जन लेस शॉक दिया जाता है। एडल्ट CPR गाइडलाइंस कब करते हैं, प्यूबर्टी में स्टार्ट करते हैं, है ना, एडल्ट वाली। उसके बाद अगर 2 रेस्क्यूअर हैं, इफ 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट ड्यूरिंग द CPR, तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट चेंज करेंगे वेंटिलेशन, एक वेंटिलेशन दे रहा है और एक चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है, तो हम लोग कब स्विच करेंगे, एटलीस्ट 5 साइकिल्स बिफोर स्विचिंग। तो हम लोग जब स्विच करेंगे पोजीशन तो एटलीस्ट 5 साइकिल देने के बाद करेंगे। ठीक है, और आफ्टर रिससिटेशन ऑफ मेंटल वेलबींग वी विल डीप ब्रीथिंग। ठीक है, सब कुछ हो गया, पर्सन मर गया या जिंदा भी जो भी हो, तो सारे स्टाफ की टीम को मिलके जो भी जिसने भी दिया उन सभी का आपस में कहेंगे ठीक है आपने अच्छा ट्राई किया, नहीं बचा पाए तो कोई बात नहीं, या बचा लिया तो भी बहुत अच्छी बात। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनको डीप ब्रीथ किया जाएगा। चेन ऑफ सर्वाइवल, चेन ऑफ सर्वाइवल में एक एक्स्ट्रा लिंक जुड़ी हुई है, रिकवरी फेज, दिस इज रिकवरी फेज। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये अभी न्यूली एड है तो ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा कि कौन सी नई एक्स्ट्रा लिंक चेन ऑफ सर्वाइवल में जोड़ी गई है, तो वो है रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। राइट, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये क्या है, OSCA चेन, आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक केयर है, और ऊपर वाली है ISCA इन हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल में क्या नहीं होगी, एम्बुलेंस। आउट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस रहेगी, इन हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं रहेगी। तो अगर ISCA पहचानने को देते हैं या OSCA, तो OSCA में एम्बुलेंस प्रेजेंट रहेगी, ISCA में एम्बुलेंस प्रेजेंट रहेगी, उससे ज़्यादा। अब RO से जो वापस से सर्कुलेशन रिटर्न हो गया, तो पोस्ट कार्डियक अरेस्ट के बाद तो उस समय BP कितना है, उसमें डायरेक्ट BP 120 एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 120/80 आ जाए, तो उसमें BP में 90, सिस्टोलिक BP 90 और डायस्टोलिक BP 65, तो 90/65। ठीक, इन्वेस्टिगेशन अगर कोमा में चला गया पेशेंट तो उसका CT ब्रेन, जो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या होगा, CT स्कैन। ये प्रेग्नेंट वुमेन में और उसमें ROSC नहीं हुआ है इन 4 मिनट में, 4 मिनट हो चुके हैं अभी तक उसका सर्कुलेशन वापस से रिटर्न नहीं आया, तो उसके क्या करेंगे, पेरी मोर्टम LSCH कर देंगे 5वें मिनट में। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर है तो फिर बच्चे को बचाएंगे, फिर 4 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं तो बचने के चांसेस कम हो चुके हैं, तो 5th मिनट में हम लोग पेरी मोर्टम LSCH कर देंगे।
अब टीटीएम के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें क्या करेंगे, क्योंकि अगर आरओएससी हो गया, टीटीएम कब देते हैं, जब आरओएससी हो गया, सर्कुलेशन वापस से रिटर्न आ गया, तो टीटीएम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमने दे दिया, फीटस ऑलरेडी उसके अंदर है, तो फीटस में ब्रेडिकार्डिया ना हो, हार्ट रेट को कोई इफेक्ट ना हो कम टेम्परेचर का, उसको लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक। डबल सीक्वेंसर डिफिब्रिलेशन क्या होता है, अभी देखा हम लोगों ने, डिफिब्रिलेशन दो पेड लगाते थे, तो डबल सीक्वेंसर डिफिब्रिलेशन में 4 लगाएंगे। ठीक है, पर इसका कोई ऐसा है नहीं कि रिड्यूस करता है मोटिलिटी को, लगा के यूज करके देखा कि शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो, बट नहीं है। अब यूज इन सीपीआर में क्या करेंगे, कफ्ड ईटीटी यूज करेंगे इन इन विथ कफ प्रेशर 20 mm ऑफ एच जी ना, प्रेशर कितना रहेगा 20 mm ऑफ एच जी। अच्छा, बच्चों में भी, बच्चों में हम जो चिल्ड्रन होते हैं पीडियाट्रिक्स में, उनमें जनरली हम नॉन कफ ट्यूब का, कफ विदाउट कफ ईटी ट्यूब का यूज करते हैं, पर सीपीआर के समय हम लोग कफ्ड ईटी ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक। इन ऑब्स्टेट्रिक कार्डियक अरेस्ट, जब ऑब्स्टेट्रिक कार्डियक अरेस्ट आया हो तो बेस्ट लोकेशन फॉर आईवी इज अपर लिम्ब ऑफ नेक, अपर लिम्ब ऑफ नेक देंगे। ठीक है, क्योंकि लोअर लिम्ब वेन, लोअर लिम्ब की वेन कहाँ पे ड्रेन होती है, आईवीसी में, और क्योंकि यूटेरस जो होता है बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा साइज का हो सकता है, वो यूटेरस जो होता है वो पेल्विक ऑर्गन से एब्डोमिनल ऑर्गन बन गया होता है, और एब्डोमिनल सारे ऑर्गन को ऑलमोस्ट सभी को प्रेस कर चुका होता है, तो इसलिए आईबीसी को कंप्रेस करता है, तो उसका ड्रेन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए हम लोग जब ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट आया है तो बेस्ट लोकेशन फॉर आईवी इज द अपर लिम्ब एंड नेक। ठीक है, रिज्यूम सीपीआर विथ चेस्ट कंप्रेशन आफ्टर एईडी डिलीवर शॉक। ठीक है, जैसे ही हम शॉक करेंगे, जैसे समझाया था कि जो है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ने जब डिलीवर कर दिया शॉक, तो ऐसा नहीं कि हम लोग वेट करेंगे कि आया कि नहीं, फिर हम वापस से अपने काम पे लग जाएंगे, वापस से उसको सीपीआर चालू कर देंगे। ठीक। अब एक एईडी की स्टेप्स कौन सी होंगी, एईडी कैसे देगा, पहले तो आप पावर ऑन करोगे, है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो पहले उसको प्लग करके पावर ऑन करोगे, फिर अटैच करोगे इलेक्ट्रोड पेड्स को, जो पोजीशन बताइएगा, सुपाइन पोजीशन है या फिर लेटरल पोजीशन जो पोजीशन है उसमें करोगे, उसके बाद रिदम को एनालाइज करोगे कि शॉकेबल है कि नॉन शॉकेबल, अगर शॉकेबल होगी तो शॉक दे दोगे पर्सन को। ये स्टेप होगी। अभी पीडियाट्रिक्स एनेस्थीसिया, इसमें से कम चीज़ें, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें याद रखनी। ठीक है, यहाँ तक ये आपने जो पढ़ा, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन आए हुए, सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नहीं छोड़ा जा सकता, ये सब इम्पोर्टेंट है। वैसे भी एनेस्थीसिया बहुत कम में कर दिया हम लोगों ने, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसकी डेरोन की डोज कितनी रखनी है, ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी एडनोसिन, डोपामिन, इन सभी की डोप यूज रखनी, डोपामिन का यूज ब्रेडिकार्डिया में कब करते हैं, जब एट्रोपिन काम नहीं करता है, तो ये चीज़ें आपको पूरा का पूरा रखना है। पीडियाट्रिक्स में, अब इसमें क्या होता है, जो पीडियाट्रिक चाइल्ड का एयरवे होगा, तो इसमें आप देखो चाइल्ड के जो एयरवे है इसमें ये नेरो है ना, तो जो यहाँ पे हम लोग एक तो आईवी लाइन, तो बच्चों में जैसे 26G पर्पल और येलो यूज करते हैं, पर्पल और येलो क्या होते हैं, सबसे पतले होते हैं, तो उनको पेन कब होता है, उनकी जो एओटा जो भी सॉरी ब्लड वेसल्स है वो भी पतली होती हैं, वेरी थिन होती हैं, तो उसके हिसाब से ये इसमें कौन सी आईवी लाइन डालते हैं, येलो और पर्पल, जो हम लोग कैनुला यूज करते हैं। ठीक। अब चिल्ड्रन की जो टंग होती है, वो टंग क्या होती है, प्रोपोर्शनली देखा जाए तो बड़ी होती है किसके कंपेयर में, एडल्ट की, तो टंग टंग जो है वो प्रोपोर्शनली लार्जर है इन चिल्ड्रन कंपेयर टू एडल्ट, और हेड और ऑक्सीपुट का साइज भी लार्जर है कंपेयर टू एडल्ट एंड। ठीक है, अब जो एपिग्लोटिस होता है वो चिल्ड्रन में ओमेगा शेप का होता है, जबकि एडल्ट में लीफ शेप का, ठीक, मैंगो लीफ शेप का होता है। और लेयरिंग्स कैसे होते हैं, कॉनिकल और फनल शेप का, यहाँ पे दिख रहा है ये फनल शेप का है, जबकि एडल्ट में सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, ठीक है, याद रखना। नर्वस पास, चाइल्ड में नर्वस पास कौन सा होता है, सबग्लोटिस, जबकि एडल्ट में नर्वस पास होता है ग्लोटिस। ठीक।
ये यहाँ से इतना ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए, ये चीज़ आपको याद रखना। तो ये क्वेश्चन जो है, नियोनेट्स कब कहते हैं ना, 44 वीक्स ऑफ एज फ्रॉम डेट ऑफ कंसेप्शन। डेट ऑफ कंसेप्शन से 44 वीक के एज तक हमको क्या कहेंगे, नियोनेट्स। इन्फेंट कब कहेंगे, डिल आफ्टर आफ्टर 44 वीक टू 1 ईयर, 1 ईयर तक हम उसको क्या कहेंगे, जब तक वो आफ्टर डिलीवरी अप टू 1 ईयर इन्फेंट कहलाएगा। उसके बाद 1 to 12 ईयर तक चाइल्ड करेगा, जब वो स्कूल प्यूबर्टी के बाद आफ्टर एडोलिसेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कई बार पूछ लेते हैं नॉर्मल, वैसे बहुत ही बेसिक है, पर ये आपको याद रखना है कि बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। के बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे हमारे शेप का जो रिप का शेप है, ये याद रखना है। जो चिल्ड्रन होते हैं, सॉरी जो एडल्ट होते हैं, उनमें ऑब्लिक शेप का होता है। ठीक है, जबकि जो बच्चे होते हैं उनमें हॉरिजॉन्टल शेप का होगा। ठीक, हाँ, एडल्ट में ऑब्लिक होगा, जैसे बकेट हैंडल होते हैं जो ना, जो अपनी बाल्टियाँ होती हैं उनके जो हैंडल होते हैं उस शेप में होती है, जबकि बच्चों में हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर फाइबर जो होते हैं एडल्ट के अंदर, मसल फाइबर जो होंगे वो टाइप 1 के होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जबकि टाइप 1 ज़्यादा होते हैं, टाइप 2 के इग्नोर, जबकि पीडियाट्रिक्स में टाइप 1 लेस होते हैं। ये तो कुछ चीज़ें हैं, उनको याद रखना। ठीक है, ये तो वही चीज़ें हैं, एक बार आप इसको देख लेना। इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। बच्चों में ऑब्वियस सी बात है, छोटे होते हैं, कई चीज़ें डेवलप नहीं होती है, तो उनके अंदर टॉलरेट पावर जो है ये बहुत कम होती है। बर्थ के समय पे जो हीमोग्लोबिन होता है, ये आपने पढ़ा होगा, एचबीएफ होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन होता है 70 to 90% जो हीमोग्लोबिन होगा बर्थ के समय, 70 to 90% हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो एचबीएफ होता है। और 3 मंथ के बाद में एचबीएफ जो है 70 to 90% से 70 to 90 था, और ड्रॉप हो जाता है विद इन 3 मंथ, कितना, 5% एचबीएफ। ठीक है, और एच बी ए बन जाता है। ए क्या है यहाँ, एडल्ट, एफ क्या है, फीटल। तो ये याद है। ठीक, अब एच बी एफ जो होता है, एच बी एफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ तो बहुत जल्दी से जाता है, एच बी एफ एज कम्पेयर टू एच बी ए ऑक्सीजन से जल्दी से जुड़ जाएगा, कंपेयर से एच बी एफ जल्दी जुड़ जाएगा, बट ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, डिलीवरी लेट करेगा। ठीक है, डिलीवरी लेट करेगा, तो जो लेस 2,3 DPG बनेगा, लेस 2,3 DPG का जो होगा, जो डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो कहाँ किस तरफ शिफ्ट होता है, राइट साइड में, राइट साइड में, राइट एस लेवल ऑफ शिफ्ट टू राइट साइड में। तो इफेक्ट ऑफ हाइपोथर्मिया, ये सब आप एक बार पढ़ लेना, हाँ, ये सब जस्ट नॉलेज के लिए है। हाँ, प्री मेडिकेशन इन द चिल्ड्रन। ठीक, तो आई ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये जो बोल्ड लेटर में लिखी है, आईवी प्रोपोफोल जो होते हैं बच्चों को नहीं देते आउटसाइड ओटी, जो कि बहुत पेनफुल होता है। और उसके बाद बच्चों में जो स्टेंजर एंजाइटी, मतलब दोस्तों जिसको अननोन है उनको देख के उनके पास नहीं जाना या डरना, ये एंजाइटी आफ्टर 6 मंथ डेवलप होती है। और सीवोफ्यूरेन कॉज इमरजेंस डिलीरियम। तो ये कुछ पॉइंट है, आपको याद रखना है ना। सिडेशन शुड बी अवॉइड, अगर कोई न्यूरो सर्जरी कर रहे, किसी की ब्रेन की सर्जरी, कोई भी न्यूरो सर्जरी और रेयर आईसीपी पेशेंट विद डिफिकल्ट एयरवे, उनमें हम सिडेशन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सिडेशन नहीं करेंगे, याद रखना है। कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ ईटीटी इंसर्शन इन चिल्ड्रन, तो इसका एक फॉर्मूला है। दूसरा आप जो लिप्स का साइड्स ऑफ लिप, जैसे ये है ना, ये लिप्स हो गए मान लीजिए, दीज आर द लिप्स, तो दिस इज द ईयर। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ट्यूब की मेजर कर सकते हैं, है ना। और इस फॉर्मूले से भी मेजर कर किया जा सकता है एज, एज अपॉन 4 + 4.5, है ना। और अगर साइज ने अपना डेप्थ ऑफ ईटीटी इंसर्शन, तो एज अपॉन 2 + 12। अब जो भी बोर्ड से लिखा हुआ आपको इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखना। तो
नियोनेट्स, अब नियोनेट्स कब तक कहते हैं? अप टू 44 वीक्स तक, ठीक। उसके बाद इन्फेंट कहते हैं। तो सबसे कॉमन क्या है उसमें? हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन, बच्चों में ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे मतलब? तो उसमें कब होता है? जब सर्कुलेटिंग वैल्यू है जो है वो 15% से कम हो जाए। जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है 15% से कम होगा तो हम बच्चों में ट्रांसफ्यूजन का। विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर, बहुत सही जगह पढ़ा हुआ है, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बोल्ड लेटर में है जहाँ भी लिखा है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 27910, ये विटामिन जो है विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, आपको पता है कि जब भी ठंड लगती है तो शिवरिंग होती है। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस किससे होती है? ब्राउन फैट से होती है। बच्चों में ब्राउन फैट ज़्यादा होती है और ये कहाँ पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर और इंट्रास्केपुलर स्पेस में, ठीक है। आप और जब बच्चे रहते हैं तो उनमें ब्राउन फैट ज़्यादा, उनमें ब्राउन फैट का अमाउंट ज़्यादा रहता है। कई बार उसको आप बर्थ के बाद भी यूज नहीं हो पाता तो ब्राउन फैट के अलग ही आपको दिखते हैं, ब्राउन फैट के चकते दिखते हैं। अब ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा? जब एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं कुछ, जैसे कि ब्रेस्ट साइज बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाएगा तो लेंजोस्कोप इंसर्शन में प्रॉब्लम होती है। वेस्कुलरिटी और एडिमा, वेट गेन हो जाता है, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, एडिमा हो जाता है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन क्या होती है वो कम हो जाती है। क्यों? प्रोजेस्टेरोन के कारण। और गैस्ट्रिक इम्पटिंग भी कम हो जाती है, किसके कारण? प्रोजेस्टेरोन के कारण। तो इसमें क्या होगा कि हमको डिफिकल्ट लेंजोस्कोप जो इंसर्शन है वो डिफिकल्ट होगा, तो हम उसमें इंट्यूबेशन के लिए एक जो लेंजोस्कोप करते हैं, यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्टबी हैंडल लेंजोस्कोप, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कौन सा लेंजोस्कोप ऑप्स में यूज किया जाता है? तो स्टबी हैंडल लेंजोस्कोप, ठीक। एक होता है सुपाइन, ये भी याद रखना है। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या है? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम जो बताया था कि यूट्रस बड़ा होगा तो इंफीरियर वेना कावा को क्या करता है? सप्रेस करेगा। इंफीरियर वेना कावा को प्रेस करेगा तो जो ब्लड है वो ब्लड जो है हार्ट तक प्रॉपर हर एयर साइकिल में नहीं पहुंचेगा। उसके कारण क्या होगा? डिजीनेस, लाइटनेस और नसिया, ये सब कुछ होगा। और ये जब कब होगा? जब सुपाइन पोजीशन में लेटी रहेगी। तो क्या कहेंगे कि उस वुमेन के, जो वुमेन का जो ये राइट साइड में क्या करेंगे? समथिंग कुछ भी चीज पिलो रख देंगे जिससे कि क्या होगा? लाइंग तो इससे रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं कितनी देर के लिए? 3 मिनट्स के लिए, अप टू 3 मिनट, नॉट अप टू 3 वीक। 3 मिनट्स के लिए करेंगे। एंड द एंड ऑफ द CO2 शुड बी 90% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वही RSI करने का जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेबर एनेस्थीसिया में क्या देते हैं? एंटोनॉक्स, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। बता देते हैं सबसे पहले जो इसका यूज हुआ था जॉन स्नो ने किया था, गेम ऑफ थ्रोन्स वाले ने। क्रोन ऑफ थ्रो ने क्वीन विक्टोरिया पे किया था। क्वीन विक्टोरिया को बहुत पेन हो रहा था लेबर पेन, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने एंटोनॉक्स का यूज किया था, ठीक है। अब ये सब देखेंगे यहाँ पे सी बॉक्स, ये भी सी बॉक्स, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। ये किसके लिए है? पेन रिलीफ के लिए। इनहेशनल में सीवोक दे सकते हैं, ओपियोइड में फेंटानिल दे सकते हैं। मेफ्रेडिन फीटल सिडेशन एंड फीटल रेस्पिरेटरी डिस्कस कराता है, तो इसको अवॉइड करेंगे। रीजनल टेक्निक्स है ना, तो लेबर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, इंसर्ट एपिड्यूरल कैथेटर, गिव 0.65 पर 2% टू 0.125% बुपी वैकेंट, ठीक है। तो ये भी हम लोग एक रीजनल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। अब PIH है, तो PIH में क्या होता है? BP 140 से 90 होगा आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। और ये प्रेगनेंसी के डिलीवरी के 12 वीक बाद क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी के 20 वीक बाद स्टार्ट हुआ और डिलीवरी होने के 12 वीक पहले ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तो लेबर एनाल्जेसिया प्री ऑपरेटिव लेबर एनाल्जेसिया और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। और मेथड ऑफ चॉइस क्या है इसकी? स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डिफिकल्ट एयरवे मदर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें से जैसे ये है, ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना। बाकी ये आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं।
जैसे जनरल एनेस्थीसिया कब नहीं देंगे, जीए कब नहीं देंगे मदर को, ठीक है, उससे कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, अगर एक्लेम्शिया है मदर को, कार्डियक डिसीज है, तो उसको नहीं देंगे मदर ड्यूरिंग लेबर और पोस्ट पेरीपार्टम प्रेजेंट विद द ब्रेथलेसनेस और चेस्ट पेन और हाइपोटेंशन, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो रहा है, तो हम लोग उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट और स्टेरॉइड पे रखेंगे। ठीक, मैसिव ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज कब कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव मैसिव ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेजेस कब हुआ है, जब ब्लड लॉस क्या हो, वह 1500 ml से ज़्यादा हो, हीमोग्लोबिन 4 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, या एक्यूट ट्रांसफ्यूजन के रिक्वायरमेंट 4 यूनिट से ज़्यादा, तो हम उसको कहेंगे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, मैसिव ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेजेस हो चुका है। मसल एमजी जो होता है वो एक मसल रिलेटेड होता है, फीटस को इफेक्ट नहीं करता है, वैक्सीनेशन के लिए सेफ होता है, इसको दे सकते हैं। हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम में रीनल फंक्शन फेल हो जाते हैं ना, नॉर्मल लीवर फंक्शन हो जाते हैं। एच मतलब हिमोलाइसिस होगा, ठीक है। ई मतलब लीवर के एंजाइम खराब हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे तो लीवर भी सही से काम नहीं करेगा। और एलपी मतलब लो प्लेटलेट में कितनी 75,000 से कम, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कंडीशन जब भी 75,000 से कम होगा तो उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो एक ये क्वेश्चन है, ये मल्टीपल गिव्ड अ फीमेल ऑन बेड रेस्ट, अब क्योंकि बेड रेस्ट है 4 मंथ से, तो पॉसिबिलिटी है डीवीटी की ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की पॉसिबिलिटी बन जाती है डीवीटी की। ठीक है, one complaint to breathlessness and chest pain. ECG show right axis deviation, right bundle branch block, S1Q3 pattern. What is the most probable diagnosis? तो क्योंकि डीबीटी में है तो एम्बोलिज्म हुआ है, पेट एम्बोलिज्म, एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ये होगा नहीं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। अब एनेस्थीसिया इंक्लूडिंग कंकरेंट डिसीज, अगर कोई डिसीज है तो उसमें एनेस्थीसिया कैसे देंगे, ये भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से एक आध पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो भी, तो वो देख लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो। तो एनेस्थीसिया फॉर पेशेंट, जैसे किसी को थायराइड है, न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं, डायबिटीज है, पेट्रोबिलियरी सर्जरी, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक जब से रिवीजन भी हो रहा है, रीनल सर्जरी है, कार्डियक सर्जरी, तो इनमें हम लोग कौन कौन सा एनेस्थीसिया क्या यूज करेंगे, कॉम्प्लिकेशन क्या है एनेस्थीसिया इन हाइपरथायरॉयड, हाइपरथायरॉयड है तो उसमें थायरॉयड स्टॉर्म आ सकता है एनेस्थीसिया के कारण, हाइपोथायरॉयड है तो मिक्सेडिमा, कोमा में जा सकता है। ठीक है, इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस को क्या होता है, थायोपेंटेन ना। थायराइड सर्जरी में कौन सा देते हैं, थायोपेंटोन, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं थायोपेंटोन में, टी से थायराइड। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस एट्राक्यूरियम, एट्राक्यूरियम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, इसके बारे में रिवीजन कर लेना। अवॉइड सेडेशन इन सीवियर कंप्रेशन, अगर सीवियर कंप्रेशन है तो उस समय हम लोग सेडेशन अवॉइड करते हैं। न्यूरो सर्जरी इंट्रा ऑपरेटिवली जब करते हैं तो उसमें मेथड, पहले आईसीपी कम करना, तो आईसीपी कम करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आईवी मैनिटोल दे दो, आईवी डायरेटिक, बीपी कम कर दो, हाइपर वेंटिलेट कर दो, लंबर पंक्चर, तो इन सभी से हम लोग आईसीपी कम कर सकते हैं। ठीक है, न्यूरो सर्जरी में कभी भी सिडेशन नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, ये याद रखना। ठीक है, इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस क्या है, थायोपेंटोन, जो कि एंटी पर होता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मसल रिलैक्सेंट टू बी अवॉइड, कौन सा मसल रिलैक्सेंट अवॉइड करना चाहिए, सक्सिनिलकोलिन, क्योंकि फेसिकुलेशन करवाएगा, फेसिकुलेशन कराएगा, हम लोग पढ़ा था सक्सिनिलकोलिन से फेसिकुलेशन होता है, ट्विचेस होता है, पैरालिसिस होता है। अब वहाँ पे जाकर रिवाइज करना, तो वहाँ पे आपको तो क्या करेगा, आईसीपी को बढ़ा देता है, इसलिए वहाँ पे हम लोग उसको अवॉइड करते हैं सक्सिनिलकोलाइड को। नेशनल एजेंट ऑफ चॉइस में आइसो फ्लूरेन देते हैं और एन फ्लूरेन को अवॉइड किया जाता है, तो याद रखना है कि न्यूरो सर्जरी में आइसो फ्लूरेन नेशनल एजेंट दिया जाता है। अब थायरॉयडोक्टोमी के पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्योंकि थायरॉयड हटा दिया तो हॉर्डनेस ऑफ वॉइस, स्वेलिंग हो जाएगी, स्टीडोर हो जाएगा, सारी ट्रेकिया बहुत लंबा समय तक है तो ट्रेकिया प्रेस करेगा। बाद में हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, क्योंकि थायरॉयड के साथ पैराथायरॉयड भी हो सकता है, तो ट्रेनिंग भी आ सकती है। वीनस एयर एम्बोलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, वीनस एयर एम्बोलिज्म में क्या होता है, अचानक से अगर आपको देता है कि फॉल इन EtCO2 डिसेचुरेशन हो रहा है और हाइपोटेंशन है, तो ये किसको सजेस्ट कर रही है, वीनस एयर एम्बोलिज्म। किससे कंफर्म होगा, मील व्हील मर्मर, ऑस्कल्टेशन और ट्रांसइसोफेजियल इको से ये कंफर्म हो जाए। सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा है या एयरवे ड्यू टू लिमिटेड नेक सब्सट्रैक्शन, क्या है,
कि फाइबर ऑप्टिक इंटूबेशन प्रेफर किया जाएगा। अगर कभी भी नेक में कुछ प्रॉब्लम है, नेक को हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, नेक का एक्सटेंशन है, तो उसमें फाइबर ऑप्टिक सबसे अच्छा इंटूबेशन प्रेफर किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट में क्या करेंगे? हाँ, ये याद रखना है, डायबिटिक पेशेंट में कौन सा साइन दिखता है? पाम साइन या प्रेयर साइन डायबिटिक पेशेंट दिखता है। ऐसे जब करके जैसे हाथ जोड़ के हम लोग उसका प्रिंट लेंगे, व्हेन वी टेक प्रिंट ऑफ द प्रेयर हैंड लाइक दिस, देन वी सी द प्रेयर साइन। पूरा साइन नहीं दिखेगी, यहाँ पे फेलेंजिस नहीं दिखेगी, यहाँ पाम विजिबल नहीं है। और एच जी 12 इनिबिटर स्टॉप 24 पीरियड डोज सर्जरी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब मेडिसिन प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन पढ़ी थी, ऑपरेटिव मेडिसिन। ठीक है, ये सब चीज़ें हाँ आप देख लेना। शुगर को कब कंट्रोल करना चाहिए? जब भी प्रेगनेंसी हो, सीपी कार्डियक बाईपास कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी, तो उसमें हमें स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करके रखना है, इंसुलिन वगैरह भी यूज करके देते हैं। ठीक है, हिपेटोबिलियरी सर्जरी में, हिपेटोबिलियरी सर्जरी जब भी हो रही है तो सिडेशन अवॉइड करेंगे। उस समय इंडक्शन हो जाए, एजेंट ऑफ चॉइस प्रोपोहोल रहेगा, मसल डिटेक्शन ऑफ चॉइस एट्राकोरियम एट्राकोरियम रहेगा, और इन्हेशनल एजेंट ऑफ चॉइस आइसोफ्लोराइन। तो ये याद रखना है ना। और इसी टाइप से और रीनल सर्जरी के लिए पहले तो इलेक्ट्रोलाइट देंगे, क्योंकि रीनल सर्जरी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन ऑफ चॉइस यहाँ भी प्रोपोफॉल है। मोस्टली अगर किसी का आंसर पहले ही होता था, नहीं आ रहा, तो उसका आंसर प्रोपोफॉल है, मोस्टली यूज एनेस्थेटिक एजेंट। फिर मसल रिडक्शन टू बी अवॉइडेड, कौन सा मसल रिडक्टर अवॉइड करना चाहिए? रीनल फेनल में सक्सिन क्लोराइड, क्योंकि वो हाइपर कलेमिया कराता है, हमने इसका देखा होता है इसका साइड इफेक्ट, ये हाइपर कलेमिया कराता है। मसल रिडक्टेंट ऑफ चॉइस एट्राक्यूरियम और सीस एट्राक्यूरियम। ठीक, और ये कौन सा एलिमिनेशन करता है? हाफ मैन एलिमिनेशन हम बता चुके हैं। इनहेशन जब किडनी कर रहे हैं, इनहेशनल वजन ऑफ चॉइस गैस हो रहा है, याद रखना। ठीक है, एनेस्थीसिया फॉर कार्डियक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी स्टार मार्क्स है बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस। तो इंडक्शन ऑफ एजेंट ऑफ चॉइस इज एथमिडेट, मसल इंडक्शन ऑफ चॉइस इज विवेक कार्डियो स्टेबल होता है, एंड इन्हेशनल एजेंट ऑफ चॉइस इज द सीवोफ्लोराइड। अब मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, जिससे मैंने बताया था कि ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So malignant hyperthermia, as I told you, it is very important topic. You need to remember everything about it. So it is in malignant hyperthermia, scoline means scoline is the contraindicated, and inhalational agent or inhalational agent are the contraindicated. ठीक, ये होता क्या है? और दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब अगर फैमिली में किसी एक को है तो आपको 90% चांसेस है कि आपको होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना। या ये कौन सी जीन में होता है, कौन से क्रोमोसोम पर होता है? क्रोमोसोम नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर 19 में होगा, और रिसेप्टर होगा रियानोडिन रिसेप्टर। ठीक, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में डबलिंग ऑफ ECO2 जब वो देखेंगे इसका ग्राफ, तो इसका स्टेप लीडर क्रिप्टोग्राफ इस टाइप से आएगा। जब क्रिप्टोग्राफ पढ़ाया था तो वहाँ बताया था स्टेप लीडर पैटर्न मिलेगा, है ना। और इसका ट्रीटमेंट है डेंटोलियम सोडियम। ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ABG करेंगे तो इसमें एसिडोसिस आएगा, मसल रिजिडिटी मिलेगी। अगर हम लोग नॉर्मल टाइम पे मसल जब प्रेसिपिटेट होता है तो मसल रिजिड हो जाती है। इसके अंदर कैफीन हेलोथेन कॉन्ट्रैक्टिव टेस्ट इसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और टू डिटेक्ट सब्सिलिटी इन द मसल टू मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। फेट एम्बोलिज्म क्या होता है? ये ऑर्थो क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग ब्रेन फ्रैक्चर हो जाए, लॉन्ग ब्रेन फ्रैक्चर के बाद अचानक से शॉक में चला जाए पर्सन, या हाइपोटेंशन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए, तो ट्रॉमा के बाद या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के बाद, जैसे फीमर टीबिया के बाद, तो उसका अगर ऐसा हिस्ट्री दी हुई है किसी बोन फ्रैक्चर की, तो उसका आंसर क्या जाएगा? फेट एम्बोलिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमेंट एम्बोलिज्म क्या होता है? जब सीमेंटिंग कर दी है, जब सीमेंटिंग बोन में सीमेंटिंग करो, टीथ में सीमेंटिंग करो, कहीं भी सीमेंटिंग कर दी, प्रोस्थेटिक लगा दिया, तो उसमें उसके बाद वो सीमेंट क्या होता है, कहीं भी एम्बोलिश हो सकता है, चांसेस रहते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल टोटल नी रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होता है। उसके बाद ऑक्लो कार्डियक रिफ्लेक्स, ऑक्लो कार्डियक रिफ्लेक्स आई सर्जरी में क्या होता है
कि जब हम लोग प्रेशर पड़ता है एक्सटर्नल ओकुलर मसल पे, क्योंकि स्टिमुलेट कर देते हैं ट्राइजेमिनल नर्व को, जिसके कारण क्या हो जाता है ब्रेडिकार्डिया। ठीक, अब कुछ पोजीशन जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन पूछे गए ये याद रखना है ना, जिसमें से मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन सी पोजीशन है। जैसे रैम पोजीशन, ओबीस पेशेंट है तो उसके लिए रेप पोजीशन। रोज पोजीशन, अगर दोनों जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 पिलो यूज किए हैं, शोल्डर पे भी यूज है और सर के हेड के अंडर द हेड भी यूज है, तो उसमें रोज पोजीशन ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोन और सुपाइन आपको पता ही, इसमें जो सेमी फ्लोवर या फॉवलर कंडीशन है पोजीशन है, उसमें एयर एम्बोलिज्म इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये जेक नी पोजीशन ये पूछी जा चुकी है। टेंडर वर्ग एंड रिवर्स टेंडर वर्ग, सर नीचे तो टेंडर टेंडर वर्ग, ठीक है, और रिवर्स टेंडर वर्ग में सर ऊपर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, याद रखना है। जेक नाइफ याद रखना है। लिथोटॉमी नॉर्मल है, पूछते नहीं। सिम्स पोजीशन, ठीक है। उसके बाद ये रिकवरी पोजीशन, इसको याद रखना है। पेशेंट इसमें क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस पर्सन, बट पल्स एंड ब्रीदिंग प्रेजेंट होगी उसके अंदर। फिर पीप क्या होता है, पीप ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अभी जितनी चीज़ें आएंगी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है, याद रखनी है सभी चीज़ें। ठीक है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ये क्या करता है, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाएगा। एटेलैक्टोसिस इन लंग्स, मतलब लंग्स में म्यूकस को इकट्ठा होने से बचाएगा। इम्प्रूव गैस एक्सचेंज को बढ़ाता है पीप। अभी पॉप ऑफ वॉल्व और प्रेशर रिलीज वाल्व, ये क्या होता है, एम्बू बैग में होता है। एम्बू बैग का दूसरा नाम सेल्फ इन्फेक्टिंग बैग, ये भी नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसमें रिलीविंग प्रेशर कितना, 30 to 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, प्रेशर याद रखना, वाटर का सेंटीमीटर में, वाटर में, mmHg नहीं है। कॉटन मेयर ग्रेडिंग क्या होता है, सब ग्लोटिक स्टेनोसिस की ग्रेडिंग को कॉटन मेयर स्टेनोसिस कहते हैं। दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो इसमें आपको जनरली ये देते हैं क्योंकि इसमें 100% ब्लॉकेज होता है, 30% 51 और ताकि आप कंफ्यूज कर सकते हो। बस इसमें क्योंकि बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं दिख रही है, दिस इज कम्प्लीटली स्टेनोस, सो दिस मोस्टली दे गिव grade 4 and they can ask what grading, what is the name of the grading, so you can see cotton Mayer's grading. What is Radowski grading, JNA में करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ENT में और पीडिया में, जुवेनाइल नेसोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन जो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक सिफालोस्पोरिन जो होते हैं, जैसे सिफाजोलिन, ये तो चॉइस फॉर प्री ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्सिस फॉर कार्डियक सर्जरी। अगर कार्डियक सर्जरी आप कर रहे हो उसके पहले आप कौन सी ड्रग दोगे, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जैसे सिफाजोलिन। ठीक है, और ये कब दोगे, 60 मिनट, 60 मिनट इंसिजन, मतलब आपने सर्जरी कर रहे हो उसका 60 मिनट पहले आप दोगे कार्डियो प्रोटेक्टिव के लिए। मोस्ट कॉमन एजेंट टू ट्रिगर मैलिग्नेंट हाइपोथैलेमस सक्सामिथ्योनिन या सक्सामिथ्योनिन, जो भी आप बोलना, तो ये भी आपको याद रखने क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, टॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक यूज इन कैटरेक्ट सर्जरी, तो प्रोप्राकेन, इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है, प्रोप्राकेन 0.5% ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अगर बोलता है आपको कि सुप्रा क्रिस्टल प्लेन या टफियर्स लाइन क्या होती है, तो L4 और L5 के बीच में लाइन होती है, तो टफियर लाइन कहते हैं। L4 L5, अगर आपको L4 और L5 के बीच में अगर आपको बोलता है टफियर लाइन पे इंजेक्शन दिया तो कहाँ दिया, L4 L5 के बीच में, तो ये याद रखना है। डेंटल सर्जरी में कौन कौन से ब्लॉक यूज करते हैं, ये ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें हैं सारे क्वेश्चन है ना, ये सब आपको याद रखना है। नंबर ऑल दिस, ओके, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो नर्व ब्लॉक, फील्ड ब्लॉक, मतलब कोई एक फील्ड कर दो, पूरी पूरी नर्व ब्लॉक कर दो जो दे रही हो। इन्फिल्ट्रेशन में पर्टिकुलर एक लोकल एरिया को आप ब्लॉक करो, तो ये डेंटल सर्जरी में तीनों ही यूज करते हैं। हेलोथेन एनेस्थीसिया कैन ट्रिगर मैलिग्नेंट। ठीक है, ये हेलोथेन भी कर सकता है, सक्सिन कोलाइन भी यूज होता है, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया को कर सकता है ना। तो और हम लोगों ने पूरा पढ़ा सुक्सा मिथ्योनियम, ये भी कर सकता है, मिथोनियम। तो सबसे अधिक कौन सा होता है, सुक्सा मिथोनियम, ये याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये भी कर सकते हैं। तो इसमें मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया कैरेक्टर क्या क्या है, क्या बताया, मसल रिजिडिटी आ जाएगी, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक, तो ये कैसे करता है, हेलोथेन कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म पूछा हुआ है तो उसको याद रखना है। हेलोथेन कैसे करेगा, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम ट्रांसपोर्ट वाया एल टाइप कैल्शियम चैनल इन द टी ट्यूब्यूल। तो इसमें इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को ये
बढ़ा देता है। उसके अलावा NIVT मीन्स नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन टेक्निक्स में बाईपेप और सीपेप, आपने नाम सुना होगा बाईपेप और सीपेप का, ठीक है। पर इसमें क्या होना चाहिए, इस दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को एफोर्ड करना पड़ेगा, तो पेशेंट को कॉन्शियस होना चाहिए। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है बाईपेप और सीपेप का, अनकॉन्शियस पेशेंट में इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंट नीडल्स हैं, वीरस नीडल, ऑप्टिकल ट्रोकर, इनको पहचानने के लिए दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, वीरस नीडल। ऑप्टिकल नीडल सर्जरी में यूज होती है, वीरस नीडल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, ऑप्टिकल ऐसे गाइड है ना। ऑप्टिकल ट्रोकर जो सर्जरी में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज होता है। स्पाइनल नीडल, यू कैन सी डिफरेंट टाइप, दिस इज द स्पाइनल नीडल, इन स्पाइनल नीडल यू कैन नॉट सी द विंग्स, while in the epidural needle you can see the wings. This is the difference, and in epidural needle you can see the patches, black white black white. Okay, so this is the epidural needle during, for giving epidural anesthesia, and spinal for giving spinal anesthesia. Can you tell me where we give spinal anesthesia, which space? And epidural needle, epidural anesthesia is very easy, we give in the epidural space. You tell me the name of the spinal anesthesia. Arachnoid. Subarachnoid. This is ट्रेन ऑफ फॉर मॉनिटर। अलना रन करते हैं इसको, पहले भी एक बार आप कर चुके हैं। यहाँ पे इमेज बेस्ट क्वेश्चन है, वीक्यू दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो है ना वीक्यू है। वीक्यू मीन्स विजुअल क्वेश्चन। जितने भी इमेजेस है सारे इंपॉर्टेंट है, केवल मैंने वही इमेजेस डाली है जो क्वेश्चन में आ सकती है, आई हुई, ठीक है, वीक्यू। ठीक, मेपल्सन ब्रीदिंग सिस्टम। अब मेपल्सन ब्रीदिंग सिस्टम ये पूरा सिस्टम है, उन्होंने ABCDEF दिया था, हमको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, हमको केवल 3 याद रखने, A, E और F, A, D और F, ठीक है, A, D और F। A को मेगिल्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसमें स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, अगर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग कर रहा है तो उसमें A यूज करेंगे। फॉर कंट्रोल ब्रीदिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रेन। B को उसको ब्रेन ब्रीदिंग सिस्टम भी कहते हैं। और फॉर चिल्ड्रन को किसी भी कंडीशन में कंट्रोल और स्पॉन्टेनियस हम हमेशा क्या करेंगे, F करेंगे, इसी को जैक्सन ब्रीथ भी कहते हैं। ये है मेपल्सन F का, ये मेपल्सन F फॉर चिल्ड्रन जो यूज करते हैं, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए हैं। सारी चीज़ें जो भी हैं, अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एग्जाम से या IMCT या नीट PG में आए हुए हैं, तो उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के बारे में है, आप इसके ऊपर पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें इसमें बता चुका हूँ मैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सी जीन पे लोकेट होता है, बेस स्क्रीनिंग टेस्ट, क्रिएटिन काइनेज टेस्ट है, और गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक हेलोथेन कैफीन टेस्ट है। ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू करके रीड कर लीजिए। इसके बाद अगर फ्लैशिंग और रेसेस हो रहा है, तो बताया था नेक में, अगर सर्जरी के दौरान फ्लैशिंग और रेसेस होता है तो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब हिस्टामिन कौन रिलीज करता है, एट्राकोडिन, ये बताया था ऑलरेडी, ठीक है। अब ये एक साथ जितनी भी ड्रग्स थी वो यहाँ पे एक साथ दे दी। एस इनहिबिटर such as enalapril should be typically be stopped 24 before elective surgery, ठीक है। दिस रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द एविडेंस। तो ये जो बताई थी कि सर्जरी के पहले ड्रग्स प्री मेडिकेशन कैसे देनी चाहिए, तो एक साथ हैं कि जैसे एंटी थायराइड ड्रग को कंटिन्यू करना पड़ेगा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, एंटी डिप्रेशन ड्रग है। सर्जरी में वैसे एंजाइटी हो रही है, वैसे डिप्रेशन में जा रहा है सर्जरी का सोच कर, तो इन सभी चीज़ों को तो कंटिन्यू रखेंगे। एंटी थायराइड डेली देना ही एक साथ में, ये सभी चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे। एस्प्रिन कंटिन्यू रखेंगे। बीटा ब्लॉकर को 6 वीक पहले, 6 से 8 वीक पहले क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। स्टेरॉइड स्मोकिंग, सॉरी बीटा ब्लॉकर को, सॉरी बीटा ब्लॉकर कंटिन्यू रहेगा, है ना। स्मोकिंग जो है वो 6 से 8 वीक पहले, मतलब 1.5 से 2 महीने पहले बंद कर देंगे। स्टेरॉइड कंटिन्यू रहेगा। एंटी कन्वर्सल कंटिन्यू रखेंगे। माओ इनहिबिटर, है ना, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर डिसकंटिन्यू करेंगे 2 से 3 बिफोर द सर्जरी। OCP जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है उसको भी डिसकंटिन्यू कर देंगे 6 बिफोर कर द कंट्री। हर्बल सप्लीमेंट है उनको 2 वीक्स बिफोर सर्जरी कर देंगे। एस इनहिबिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, पर ये आपको याद रखना है। एस इनहिबिटर जैसे कि एनालाप्रिल जो होता है उसको 24 आवर बिफोर द सर्जरी क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे।
जबकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जैसे एमोलोडिपिन, उसको कंटिन्यू है, एमोलोडिपिन, निमिडिपिन जैसे रखेंगे। जबकि ARB मतलब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनको हम लोग 24 आवर बिफोर सर्जरी स्टॉप करेंगे। ये चीज़ें हमको याद रखनी है। कीटामाइन इज द बेनिफिशियल इन एस्थमा। ये ऑलरेडी ये केवल एक टाइप रिवीजन टाइप का शॉर्ट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है ना। कीटामाइन जो होता है एस्थमा के लिए बेनिफिशियल होता है, तो इसको यूज़ करते हैं ब्रोंकोडायलेटर में। जब अगर किसी एस्थमेटिक पेशेंट है, और वीक यूरेनियम इज ए नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिडक्शन बता चुके हैं, और ना और सिस्टम में रिलीज नहीं करता। तो जिसको भी अस्थमा पेशेंट है उसको एलर्जी है, तो एट्राक्यूरियम की जगह हम लोग वीक यूरेनियम यूज करेंगे। ठीक है। एनेस्थीसिया इन एस्थमेटिक, सेम वही चीज़। आईवी इंडक्शन एजेंट में प्रोपोफॉल यूज करेंगे। कीटामाइन यूज करेंगे मसल रिडक्शन में वीक यूरेनियम, रोक यूरेनियम जो होता है आर से आर था रेपिड होता है। सिस एट्राक्यूरियम यूज कर सकते हैं। ठीक। एट्राक्यूरियम सिस्टम में यूज करता है, जबकि सिस एट्राक्यूरियम सिस्टम में यूज नहीं करता। पेन एक्राक्यूरियम रिलीज लो लेवल ऑफ हिस्टामिन, तो इसको भी ऐसे यूज कर सकते हैं, पर हम लोग सेफ रहेंगे तो वीकोरोनियम ही यूज किया जाएगा। नेशनल एजेंट में सीवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, हेलोथेन, डेस्फ्लोरिन, ये सब चीज़ें है, तो इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें ऐसे सारी जो चीज़ें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेजल कैनुला, अभी ऑक्सीजन फ्लो कितना होता है ना, यूज फ्लो 22 to 44%। जो नेजल कैनुला होता है इसमें 20 to 4%, इसमें लगभग 22%, 22-23% तो क्या होता है, इससे आता है नेजल कैनुला के, और 21% किसके थ्रू होता है, 21% इन्वायरमेंट में होता है। तो ये मान लें यहाँ 24% और 21% एनवायरमेंट से ऑक्सीजन आया। ठीक है, 1 लीटर पर मिनट देंगे तो इतना, ये कई बार रेट भी पूछ लेते हैं, तो ये एक बार इसके थ्रू मतलब एक बार आप देख लेंगे। 1 लीटर पर मिनट में 24%, इसको याद रख लेंगे। 1 लीटर में याद रखेंगे, 3 लीटर में, 4 लीटर में, 6 लीटर में 54 मैक्सिमम। ओके, बाकी ये सब चीज़ें एक बार आप देख लेना। लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन क्या होता है, इसके बारे में एक पढ़ लेंगे। टाइडल वॉल्यूम 6 ml से कम होना चाहिए, इसके बराबर में पीप यूज करेंगे। पीप बताया था। प्लेट टू प्रेशर 30 mm ऑफ H2O से कम होना चाहिए। और परमिसिव हाइपरकेपनिया, माइल्ड टू ऐसी हम लोग माइल्ड रेस्पिरेटरी सिडोसिस को अलाउ करेंगे। और FiO2 जो मिनिमम होना चाहिए वो PaO2 55 mm ऑफ Hg होना चाहिए, या SpO2 88% से अधिक होना चाहिए। तो ये होता है लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें एक बार देख लेंगे। ठीक है। हॉर्स कॉपर एंड होज आर मेड ऑफ कॉपर एंड दे कलर कोडेड। जो होज होते हैं जिससे डिलीवर होता है, तो उनका भी अलग अलग कलर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे गलती ना हो देते समय। तो ऑक्सीजन का वाइट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू होता है, एयर का ब्लैक होता है, और सक्शन के लिए येलो कलर का होता है। ये आप FEV है, FEV के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं कि ऐसे कैटेगरी कौन सी है, ऐसे कैटेगरी 1 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कौन सा है, तो ये उसके लिए थोड़ा सा आप देख लें। कोकेन क्या करता है, कोकेन जो करता है वो हाइपरटेंशन करता है, ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना। कोकेन इज यूनिक अमंग लोकोएनेस्थेटिक ड्यू टू सिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट, ये पहले भी बता चुका हूँ। उसी कारण क्या करता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेकिकार्डिया करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार आप इनको गो थ्रू कर लेंगे। कन्वेंशनल ऑक्सीजन मास्क, कन्वेंशनल ऑक्सीजन मास्क के बारे में थोड़ा कैसा होता है, कितना कन्वेंशनल मास्क टिपिकली अराउंड 10 लीटर तक 1 मिनट में दे सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। कितने नेजल प्रॉन्ग फेशियल मास्क, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, ये क्या है सारी चीज़ें। फिर कोविड-19 का जो पेशेंट है, तो अगर वो ठीक हो गया है कोविड से, तो उसको सर्जरी के क्या करना चाहिए। जैसे स्टडी सजेस्ट दैट परफॉर्मिंग सर्जरी विद इन 6 वीक ऑफ कोविड-19 डायग्नोसिस में भी एसोसिएटेड इंक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो अगर 6 वीक ठीक हुआ, उसके 6 वीक के अंदर ही हमने सर्जरी कर दी, तो क्या करेंगे, क्या होगा, इंक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डिले सर्जरी कर देते हैं इस पीरियड के बाद। ठीक है, तो वो ही सारी चीज़ें हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो फिर ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी स्टार मार्क्स हैं
जो भी इम्पोर्टेंट बताया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी हाईलाइट किया है, स्टार लिखा है, तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए और फिर से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे इमेज हैं, ठीक है, जितने भी हैं ये सारे वीक्यू हैं, वीक्यू मतलब विजुअल क्वेश्चंस हैं, वे पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही एनेस्थेशिया खत्म होता है। थैंक यू।